Good afternoon, friends. I, Satish Goyal, welcome all the members on behalf of Shastra City Study Circle. Today, as we all know, we have session on bank audits. Navya Malhotra, he goes to come. However, is not well physically. So we have his partner, CA Pranshu Pasritari. Request Pranshu to come to the side, please. Pranshuji is a chartered accountant and a commerce graduate, qualified as chartered accountant. In the year 2015 and is into practice since then. He has an experience of over 6 years in the field of indirect taxation. His key areas of expertise includes tax advisory, transaction modeling, health checks, and diagnostics, management of procedural compliances, GST refunds, litigations, etc. He has worked with clients such as hotels, automobile, manufacturing, transportation, construction, and had led several assignments and resolved their day-to-day problems. He has also written a book on impact of GST on real estate sector. He is a member of ITRAA, Independent Tax Research and Analysis Association. He is a regular speaker on indirect tax issues and has addressed a number of seminars in various forums, study circles, and universities. And because we were confined to Navya Malhotra only, we never looked back to Pranshu. So I'm so sorry, Pranshu. However, we'll look forward to see you here as a speaker. And friends, as you all know, during bank audits, certain GST transactions are to be also addressed. So to address GST issues under bank branch audit, we have now Pranshu Pasritari. Please welcome him and over to Pranshu. Thank you, Satish ji. Good afternoon, members. Good afternoon. It's an opportunity to represent my views on such a topic in such hot weather, and it's good to see you here. And we will have an interactive session. I am not representing any PPT or anything else. So if you have any questions, queries regarding GST on bank audits, or if I will share with you my views, you can ask anything during the session also. So आप सब GST में काम करते हैं या नहीं? Yes. Is everyone working on GST? Yes. कोई issues आ रहे हैं आजकल? Notices and assessments वो तो चल ही गए वो तो पूरी भरमार लगी हुई है. and appeals now. Yes. अभी बहुत ज़्यादा आ गई है इस टाइम पे. तो डिपार्टमेंट भी अभी बहुत प्रेशर है, लोड है डिपार्टमेंट पे भी 17-18 का बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है. तो साथ के साथ अब बैंक ऑडिट्स भी आ गए हमारे. तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैंक ऑडिट्स के लिए जीएसटी का इतना महत्व पहले नहीं हुआ. इनडायरेक्ट टैक्स पे पहले सीए इतना प्रेशर नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन अब जब से जीएसटी आया है तब से क्या हुआ है कि क्लाइंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम डिपार्टमेंट साथ जुड़ रहे हैं, डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ रहे हैं. एक चेन बन रखी है कि क्लाइंट रोज के रोज कोई ना कोई क्वेरी लेके आता है, सर इसका बताओ जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा. फिर हम बुक खोलते हैं, पढ़ते हैं कि जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं है, फिर कोई डाउट आता है, फिर डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है, फिर हम डिपार्टमेंट को क्वेरी भेजते हैं, फिर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, फिर पता चलता है सर्कुलर आ रहा है कि ये खत्म हो गया. तो इतना टाइम लग जाता है, 5-6 साल लग जाते हैं एक पॉइंट क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से. तो आज का टॉपिक जो है जीएसटी ड्यूरिंग बैंक ब्रांच ऑडिट्स. अभी ऑडिट सबका साइन हो चुके हैं ऑलमोस्ट. तो जो क्वेरीज हैं मैक्सिमम मैं आपकी रिजॉल्व कर दूंगा. जब कुछ रह जाती हैं, कुछ है, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो आप नोट करके कभी भी पूछ सकते हैं. First of all, the main points we have to consider before starting our GST audit. एक लिस्ट है, अगर कोई नोट करना चाहे नोट कर सकता है कि हमें क्या क्या
पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं बिफोर स्टार्टिंग आवर केस। सबसे पहले है कि बैंक की जो सर्विसेज है क्या वो टैक्सेबल है या नहीं। यू शुड टेक अ फाइनेंशियल रिपोर्ट डाउनलोडेड फ्रॉम दैट बैंक और आपको एक एक लाइन आइटम वाइज आपको चेक करना चाहिए कि इज इट अ टैक्सेबल सप्लाई और एन एग्जेम्प्ट सप्लाई और इट इज एन आरसीएम सप्लाई। आप एक इनकम का हेड पूरा और एक एक्सपेंसेस का हेड लाइन आइटम वाइज आप चेक कर रहे हैं कि क्या ये टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है अकॉर्डिंग टू द जीएसटी नोटिफिकेशन। टैक्सेबल है तो क्या उस पर टैक्स पे कर रखा है बैंक ने या नहीं पे कर रखा है। अगर एग्जाम्प्ट है तो कौन सी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में वो फॉलो करता है। एंड देयर कैन बी केसेस की आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी हो पर बैंक ने आरसीएम पे ना कर रखा हो। उसके बाद आईटीसी सबसे मेन इशू जो है वो आईटीसी का आता है आज की डेट में। डिपार्टमेंट सबसे पहले आईटीसी को प्रेफर करता है कि आईटीसी आपने गलत तो नहीं ले लिया। सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि आपका आईटीसी ज्यादा नहीं ले लिया, 2A से ज्यादा ले लिया आपने, या फिर कोई आपने आईटीसी लिया है जो इनएलिजिबल था एज पर सेक्शन 17(5). क्या आपने एक्चुअल आईटीसी रिवर्सल किया है या नहीं किया, जो रिवर्सल बनता था वो किया है या नहीं। फिर एक क्वेश्चन और उठता है जो सेक्शन 16(2) में लिखा है 180 डेज पेमेंट। क्या आपने अपने वेंडर्स की पेमेंट 180 डेज में कर दी। इफ नॉट डन देन वेदर हैव यू रिवर्स द आईटीसी और नॉट, क्या उस पर इंटरेस्ट पे करा है या नहीं करा। देन आईटीसी रजिस्टर यू हैव टू टेक फ्रॉम द बैंक कि व्हाट द आईटीसी रजिस्टर दे मेंटेन, यू कैन टेक एज अ रिकॉर्ड आल्सो कि आईटीसी रजिस्टर में उन्होंने क्या क्या एंट्रीज पे क्या क्या एक्सपेंसेस पे इनपुट ले रखा है। देन आईएसडी इनवॉइसेस, इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कि आईएसडी के इनपुट्स उनको मिल रहे होंगे कि उनका एक हेड ऑफिस है वो अपने ब्रांचेस को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अपना इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई जो है क्या वो उस पर टैक्स प्रॉपर्ली पे हुआ है या नहीं हुआ, क्या वो लोकल सप्लाई थी या वो इंटरस्टेट सप्लाई थी। अगर ये इशू उठता है कि अगर वो आपका इंटरस्टेट सप्लाई थी एंड यू हैव चार्ज इंटरस्टेट सप्लाई, या वो इंट्रास्टेट सप्लाई थी एंड यू हैव चार्ज इंटरस्टेट सप्लाई, देन व्हाट टू डू। फिर टाइम ऑफ सप्लाई, आपकी सप्लाई कब फॉल कर रही है, कितने डेज में आपको इनवॉइस काटना था और कब आपको जीएसटी पे करना था। एलयूटी, क्या एलयूटी ले रखा है बैंक ने, आर दे प्रोवाइडिंग एनी एक्सपोर्ट सर्विसेज आल्सो, आर दे प्रोवाइडिंग वेदर विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट जीएसटी। उसके बाद एक 99C, लास्ट ईयर की 99C, एक बार वो मैंडेटरी है वो आप चेक कर लें कि लास्ट ईयर की हाँ जी ब्रांच लेवल पे तो नहीं मिलेगा इसको। ब्रांच लेवल पे 99C तो मिल सकती है। ये वो तो हेड ऑफिस लेवल पे जाएगी। हेड ऑफिस लेवल पे एक सेंट्रलाइज ही है या एटलीस्ट स्टेट लेवल पे जो स्टेट लेवल पे तो एक जीएसटी नंबर की तो मिल सकती है ना आपको, पर वो ब्रांच लेवल पे नहीं मिलेगी। वो ब्रांच लेवल वो जनरल लेवल में मिलेगी। but you can ask the working for the input they have taken in next financial year. It is the main point. इसलिए उसका हमने main point है 99C चेक करने का कि आपको जो इनपुट आपने पिछले साल का इस साल में लिया, इस साल का नेक्स्ट ईयर में लिया, क्या वो उसका वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। और एक पॉइंट इसमें है ब्रांच ट्रांजैक्शंस, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। अगर कोई इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन हो रही है तो उनका आईटीसी का क्या इम्पैक्ट है और उनकी पेमेंट्स का क्या इम्पैक्ट होता है। तो these are the main points you have to consider before concluding your bank branch audit. So we will start line wise. पहला तो क्या है कि गुड्स की डेफिनेशन सबको पता है क्या है, जीएसटी के अंदर गुड्स क्या है, एनीवन उसके अंदर क्या फॉल करता है, क्या एक्सक्लूड करता है। गुड्स को कह दिया कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो भी हैं हमारी, अदर देन सिक्योरिटीज एंड मनी, सिक्योरिटीज एंड मनीज को एक्सक्लूड करके उन्होंने कहा कि ये गुड्स है। सिक्योरिटीज एंड मनीज के अंदर क्या क्या फॉल कर जाएगा एज पर बैंक, कोई भी आपके नोट्स, करेंसी नोट्स, कोई आपके बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई आपका प्रॉमिसरी नोट्स, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट, दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ मनी एज पर मनी डेफिनेशन। ठीक है ना, तो ये गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, तो वी कैन नॉट अप्लाई जीएसटी ऑन द ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग दिस। इफ फॉरेन करेंसी आपको
फॉरेन करेंसी होता है। सर फॉरेन करेंसी जो है वो बाहर हो जाती है, पर लेकिन जो चार्जेस हम चार्ज करते हैं बैंक, सर्विस चार्जेस होगी, कमीशन होगी, आपके कोई Other than interest, everything is charged. इंटरेस्ट भी क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। Credit card का interest is taxable. टैक्सेबल Yes. वो स्पेसिफिक लिखा है कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होगा। उसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी डिस्काउंट कोई बैंक दे रहा है, दैट इज Charges on credit card also taxable. यस, चार्जेस तो सारी टैक्सेबल है। अब बैंक आपके डीडी के चार्जेस लेता है, आपके कोई और एटीएम के चार्जेस ले लेता है, आपसे पासबुक प्रिंट करने के चार्जेस ले लेता है, तो ऑल द चार्जेस आर टैक्सेबल एक्सक्लूडिंग ओनली इंटरेस्ट दैट इज फॉर डिपॉजिट्स एंड लोन्स, दैट इज एन एग्जम्प्ट इनकम। Discount. And discount डिस्काउंट is interest only. हाँ, इट इज सिमिलर टू इंटरेस्ट। उसके बाद है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, इट इज डिफाइंड कि ये सेक्शन 16 आपको कंप्लाई करना है, और 17(5) का जो इनपुट है, जो ब्लॉक इनपुट है, वो नहीं लेंगे। इट इज क्लियर टू एवरीवन कि 16 के अंदर क्या क्या कंडीशन लिखी हैं कि आपको इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास गुड्स रिसीव होने चाहिए, सर्विस रिसीव होनी चाहिए, आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद कि आपने रिटर्न फाइल करनी है और आपने टैक्स पे करना है। ये 4 कंडीशन लेना है। इसके बाद आप इनपुट अवेलेबल है लेने के लिए। बट बैंक के केस में इन्होंने स्पेसिफिक रूल 38 लिखा हुआ है। रूल 38 क्या कहता है? रूल 38 ये कहता है कि पहले तो आपको नॉट फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस कोई भी इनपुट है वो अवेल नहीं करना। अदर देन बिजनेस इनपुट आप अवेल नहीं करोगे, उसको एक्सक्लूड कर दो अपने रजिस्टर में से, या कोई 17(5) का या फिर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कोई। उसके बाद क्या कहता है कि 17(4) का जो सेकंड प्रोवाइजो है वो क्या कहता है कि इंटर ब्रांच इनपुट जो है दैट इज अवेलेबल। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटर ब्रांच अगर आपके पास कोई इनवॉइस आ रहा है और आप इनपुट ले रहे हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट, वो आप 100% अवेल कर सकते हैं। इसके बाद जो इनपुट बच जाता है आपका, दैट वी हैव टू टेक ओनली 50%। जो टोटल आपका इनपुट बच जाता है अदर देन नॉन बिजनेस, अदर देन 17(5) एंड अदर देन इंटर ब्रांच, जो इनपुट बच गया उसका 50% यू आर एलिजिबल टू टेक। अगर आप इस कंडीशन में नहीं जाना चाहते, इस सिस्टम में नहीं जाना चाहते, तो आपको आइटम वाइज आपको इनपुट अपना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपना रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि दिस इज फॉर बिजनेस, दिस इज फॉर नॉन बिजनेस, दिस इज फॉर एग्जाम। एक ये इन्होंने प्रोविजन दे दिया बैंक को कि ज्यादा झंझट में ना पड़ो, 50% अवेल करके खत्म करो। अदरवाइज वी हैव टू अप्लाई रूल 42 एंड 43। दोनों ऑप्शन है बैंक के पास, either to go through 42, 43, that is for common input reversals, or you can take 50% of the total eligible input after deducting your non-business 17(5) and second proviso जो कहता है कि इंटर ब्रांच ट्रांसफर जो है वो आप 100% ले सकते हो। उसके अलावा जो भी इनपुट है you are eligible to take only 50%। सर एक बार यार दो रिपीट करो, उसी को दो रिपीट करो। सर एक रूल 38 ये कहता है कि बैंकिंग के केस में स्पेसिफिक इन्होंने कहा है कि आप एक तो नॉन बिजनेस इनपुट आप खत्म कर दो, नॉन बिजनेस इनपुट आप नहीं ले सकते। दूसरा 17(5) का इनपुट नहीं ले सकते। उसके बाद कहा है कि इंटर ब्रांच जो इनपुट है यू आर एलिजिबल टू टेक 100%। और उसके बाद जो इनपुट बचता है, होल जो इनपुट आपके रजिस्टर में दिख रहा है, यू आर एलिजिबल टू टेक ओनली 50%। कि मान लो आपका 100 रुपए का इनपुट आ रहा है 2A में, 100 रुपए में से आपका 10 रुपए का आपका इनएलिजिबल है, 90 रुपए रह गया। 90 में से 20 रुपए आपका इंटर ब्रांच है, तो आपका रह गया 70 रुपए। 70 रुपए में से यू आर एलिजिबल टू टेक ओनली 35%, 35 रुपीज। वो फिक्स कर दिया, 50% लेना है टोटल इनपुट का। और इधर टू गो थ्रू रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर रूल 42 और 43। उसकी वर्किंग थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए उन्होंने बैंकिंग के लिए कहते हैं, क्योंकि बैंक की मैक्सिमम इंटरेस्ट इनकम ही बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मैक्सिमम एग्जाम इनकम हो जाती है, तो उस झंझट में ना पड़े, तो वो कहते हैं कि आप 50% का क्लॉज लेके आप अपना इनपुट अवेल कर लें। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 16(2) का जो सेकंड प्रोवाइजो है वो ये कहता है, फर्स्ट प्रोवाइजो, कि आपको 180 डेज में पेमेंट करनी है टू योर वेंडर्स, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एन इनपुट। ये सबको क्लियर है कि अगर आपने कोई 180 डेज के बाद कोई पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इनपुट रिवर्स करना है,
और जब आप उसकी पेमेंट करेंगे तब आप उसका इनपुट दोबारा रिक्लेम कर सकते हैं, but you have to pay the interest also along with it. लेकिन कोई ये बताएगा इंटर ब्रांच या फिर सेम पैन में अगर कोई रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं उसमें पेमेंट के लिए मैंडेटरी है या नहीं? मैं हरियाणा में रजिस्टर्ड हूँ, मैं यूपी से कोई बैंक से अपनी सेम पैन पे रजिस्टर्ड एंटिटी से मैं कोई इनपुट ले रहा हूँ और उन्होंने मुझे इनवॉइस काट दिया अपना, तो क्या मुझे उसकी पेमेंट करनी है 180 डेज में या नहीं करनी? सेम बैंक टू बैंक। कोई और किसी और के शेड्यूल 1 क्लॉज 2 क्या कहता है? शेड्यूल 1 पता है क्या है? शेड्यूल 1 जो वो कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन भी आपकी ये सप्लाई मानी जाएगी। उसका क्लॉज 2 क्या कहता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्संस विल बी डीम्ड टू बी अ सप्लाई। उसने ये कह दिया कि ये जो है वो डीम मानी जाएगी कि आपकी सप्लाई है। ठीक है, ये क्लियर है? शेड्यूल 1 क्लॉज 2 तो मतलब कि डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया, यूपी ने हरियाणा को दी, वो डीम सप्लाई है इवन विदाउट अ कंसिडरेशन। पर सेक्शन 16(2) क्या कहता है कि इनपुट तब मिलेगा जब आप पेमेंट करेंगे उसको। ठीक है, ये कहता है वो 180 डेज में पेमेंट करेंगे तभी आपको इनपुट मिलेगा। इसके बाद रूल 37 में जाते हैं। रूल 37 में फर्स्ट प्रोविजो में लिखता है even if the payment is not made it will be deemed to be a payment made if it is falling under schedule 1 clause 2 condition कि हमने distinct entities को कोई सर्विसेज दी हैं और पेमेंट नहीं करी, लेकिन रूल 37 कहता है कि it will be deemed कि हमने पेमेंट कर दी, whether you pay physically or not it does not matter, it shall be deemed to have been paid। तो अगर वहां पे ये कह दिया कि इट इज डीम्ड टू बी पेड तो 180 डेज की कोई कंडीशन इसमें फॉल नहीं करेगी। तो यू आर एलिजिबल टू टेक एन इनपुट विदाउट पेमेंट टू अदर ब्रांच आल्सो। फिर इसके अंदर एक आरसीएम की प्रोविजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीएम के कई पॉइंट्स जो हैं वो बैंक के ऊपर फॉल कर सकते हैं और हो सकता है कि बैंक आरसीएम की लायबिलिटी जो है वो पे ना कर रहे हो बैंक से। सबसे पहला आता है हमारा सीरियल नंबर जो 2 है, लीगल सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल और अ सीनियर लॉयर टू अ बिजनेस एंटिटी। उसमें वर्ड लिखा है बिजनेस एंटिटी और बैंक जो है वो बिजनेस एंटिटी मानी जाती है। तो बिजनेस एंटिटी को अगर कोई लीगल सर्विस मिल रही है तो दे आर लायबल टू पे द टैक्स अंडर आरसी। ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है उसके अंदर। सीरियल नंबर 4 स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अगर कोई बैंक स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रहा है तो बैंक हैज टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, और अगर कोई बैंक फॉरवर्ड चार्ज में पे कर रहा है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। स्पॉन्सरशिप ये दे भी सकते हैं बैंक। बैंक्स आल्सो आर एलिजिबल टू अवेल स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एंड आल्सो प्रोवाइड द स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो अगर वो कोई अवेल कर रहे हैं सर्विसेज स्पॉन्सरशिप की तो दे आर लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसी। उसके बाद है सीरियल नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं। सर्विसेज रिसीव बाय अ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कोई भी सर्विस अगर कोई गवर्नमेंट से ले रहा है तो उसके अंदर आरसीएम की लायबिलिटी फॉल कर जाती है। और गवर्नमेंट की सर्विसेज में क्या क्या फॉल कर सकता है, कोई बता सकता है एग्जाम्पल? कोई अभी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का केस आया था, इसको उसमें फॉलो करना। जितने स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होते हैं ये लाइसेंसिंग फीस या लेते हैं, उसका आरसीएम नहीं काटना, नहीं काटते। शुरू से बहुत क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आरसीएम पे नहीं किया इस सर्विस से। आपने कोई गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया किसी भी चीज का, अदर देन लिकर उन्होंने कह दिया कि लिकर लाइसेंस पे आरसीएम नहीं फॉलो होगा क्योंकि इट इज नॉट अ सप्लाई अंडर जीएसटी। उसके अलावा कोई भी अगर सर्विसेज हैं, कोई हम गवर्नमेंट से कोई भी लाइसेंस ले रहे हैं तो अगर हमने कोई चार्ज गवर्नमेंट को पे करा है तो वी हैव टू पे द आरसीएम अंडर जीएसटी। तो ये ध्यान रख लेना। ये आजकल नोटिस भी बहुत आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे हरियाणा में एचएसआईडीसी है, पंजाब में पीएसआईडीसी है, एंटिटीज बहुत लोगों ने वहाँ से सर्विसेज अवेल करी हैं, लोगों ने लाइसेंसेस लिए हैं, लाइसेंस की चार्जेस पे करे हैं,
पर आरसीएम की लायबिलिटी नहीं पे करी, क्योंकि स्पेसिफिक वहाँ पे ये नहीं लिखा कि लाइसेंस फीस पेड टू गवर्नमेंट, उन्होंने कहा दिया सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब सर्विसेज अवेल्ड में हम कोई भी सर्विस हो सकती है गवर्नमेंट से जो अवेल कर रखी है। और के एग्जांपल इसके और सर रेंट ब्रांच रेंट सर वो भी उसके मैं नेक्स्ट क्लॉज पढ़ रहा हूँ, सीरियल नंबर 5A जो है, सर्विसेज रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। अगर कोई इमोल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं, मान लो आपकी जो ब्रांच है वो रेंटेड प्रॉपर्टी है, कोई लीज प्रॉपर्टी है और आप उस पर लीज पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वी आर लायबल टू पे अंडर आरसीएम। सो बैंक्स के केस में क्या एग्जांपल हो सकते हैं? ये मतलब बैंक्स किस तरह की सर्विस दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से? सर बैंक्स के केस में सही वगैरह ये सारी जो भी उनके लाइसेंसेस वगैरह कुछ होंगे जो गवर्नमेंट से ले सकते हैं, लाइसेंस की लिस्ट आपने ले लें उनसे, उनके पास लेजर होगा लाइसेंसेस का जो ईयरली वो लाइसेंसेस पे करते हैं। कोई लाइसेंसेस हो सकता है 4 इयर्स के हो, कोई एनुअल हो, कोई हाफ ईयरली हो, तो आप उनसे लाइसेंसेस की लिस्ट ले लें और वहाँ पे देख लें कि कौन से वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे। इमोल प्रॉपर्टी सर क्लियर है, कोई भी सर्विसेज अगर रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको आरसीएम पे करना है उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्जेस पे। सर 5A की जरूरत क्या पड़ी? 5A कवर होता है ये? सर उसके अंदर अदर देन रेंटिंग लिखा हुआ है, उसमें अदर देन रेंटिंग लिखा हुआ है। सर रेंट अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट ऑनर को दे रहे हैं देन प्राइवेट में सर वो फॉरवर्ड चार्ज में फॉल कर जाता है, इट इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। नहीं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है सर दैट इज दिस प्रॉब्लम, नहीं वो उसकी प्रॉब्लम है सर, हमारे ऊपर कोई लिखा नहीं है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड वाला तो क्लॉज खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, जो 9(4) के अंदर अनरजिस्टर्ड का आरसीएम था वो तो खत्म कर दिया। अब तो सिर्फ स्पेसिफिक जो सर्विसेज जो उन्होंने डिफाइन करी है सिर्फ उन पे आरसीएम फॉल होता है 9(4) में। ये 9(3) की सारी डेफिनेशन है, जो 9(3) के अंदर नोटिफिकेशन है 13/2017, उसके अंदर ये एंट्री डिफाइन कर रखी है। The services of renting of immovable property is पहले वाली services by government to any business entity। उसमें लिखा हुआ है अदर देन रेंटिंग ऑफ इमोल, तो रेंटिंग के लिए उन्होंने अलग से क्लॉज दे रखा है। अब वो कई बार जो बैंक की ब्रांचेस की रेजिडेंशियल में भी खुली होती है, रेजिडेंशियल में तो नहीं होती, रेजिडेंशियल में सर वो बहुत छोटी ब्रांचेज होती हैं, खुली होती है। खुली होती हैं, कई जगह खुली होती हैं, रूरल एरिया में खुली होती है, रूरल में होती है कई बार। तो उस पे फिर आरसीएम पे करने हैं सर अगर तो वो देखो कमर्शियल प्रॉपर्टी में तो दिक्कत नहीं आएगी, कमर्शियल में तो फॉरवर्ड चार्ज में। अब वो 5AA क्लॉज आया जो अभी इन्होंने पीछे 2022 में ऐड किया था सर, वो जो उसमें लिखा है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर अ बिजनेस पर्पस टू अ रजिस्टर्ड एंटिटी, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड एंटिटी 5AA क्लॉज है, जो अभी पीछे बहुत तंग हुए थे लोग जिस केस के लिए, बाद में फिर क्लैरिफिकेशन भी आई। अगर तो वो बिजनेस एंटिटी अगर वो अपना जो खर्चा है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के रेंट का अगर वो अपनी बुक्स में डाल रहा है तो आरसीएम में फॉल होगा। अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए, क्योंकि उसके अंदर वो लिखा है सर्विसेज रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड एंटिटी। अब रजिस्टर्ड तो प्रोप्राइटर भी था, वो किसी घर में रह रहा था, तो उसको दिक्कत होगी, कहता मैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए मैं कैसे आरसीएम पे करूँ, ये तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाली, अगर वो खर्चा पीएनएल में बुक कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो इट इज फॉर अ बिजनेस पर्पस, तो उस पर आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। इस केस में ये भी हो सकता है कि बैंक ने अपने डायरेक्टर्स को अपने किसी घर को अपना रेंट पे दे दिया डायरेक्टर्स को। ये भी पॉइंट आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर कोई कंपनी का कोई रेंट पे तो नहीं रह रहा और वो खर्चा बुक कर रहे हैं, डेबिट में पीएनएल में अपना खर्चा बुक कर रहे हैं, तो दैट विल बी आल्सो केस फॉलिंग अंडर दिस क्लॉज 5AA, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू अ रजिस्टर्ड एंटिटी फॉर बिजनेस पर्पस। जैसे मैनेजर वगैरह को तो ब्रांच देखी है सर अगर वो खर्चा बुक कर रहे हैं तो वी हैव टू पे आरसीएम ऑन दैट, खर्चा बुक हो रहा है हो रहा है तो वी हैव टू पे आरसीएम ऑन दैट। वो सैलरी में होता है या रेंट में होता है? सर वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा कि उनके एग्रीमेंट में क्या लिखा है। सैलरी पार्ट होगा सर वो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, एम्प्लॉय एग्रीमेंट जो है उनका। पर अगर सैलरी में भी होता है खर्चा तो बुक्स में जाएगा सर फिर वो सैलरी के हेड में चला जाता है, तो नहीं आएगा, वो फिर वो घूम जाता है बीच में, प्लानिंग करते हैं तो उस पे कवर नहीं होगा। एक है सर्विसेज बाय डायरेक्टर टू अ कंपनी, हमारी बैंक जो है वो कंपनी है और उनके जो डायरेक्टर्स हैं अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक्स को, तो इट विल फॉल अंडर दिस
आरसीएम लायबिलिटी जो सिटिंग फीस है, अगर तो होल टाइम डायरेक्टर है और वो सैलरी चार्ज कर रहा है और उस पर 192 का टीडीएस भी कट रहा है तो वो बाहर हो जाएगा। इसमें क्लैरिफिकेशन भी आई थी, सर्कुलर नंबर 140 था। तो उसके अंदर अगर वो सिटिंग फीस है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर की भी सिटिंग फीस फॉल कर रहा है तो इट विल बी चार्जेबल अंडर जीएसटी एज आरसीएम। सिक्योरिटी सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, सारे बैंक्स में सिक्योरिटी सर्विसेज आती हैं, सबने सिक्योरिटी पर्सन रखे हैं अपने, तो इस केस में भी वो आरसीएम में फॉल करेगा। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम लायबिलिटी अंडर जीएसटी। अगर वो सिक्योरिटी सर्विस रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड है, फॉरवर्ड चार्ज में कर रहा है, फिर कोई इशू नहीं तो है। इसमें भी एक इशू आता है ना, अगर कॉर्पोरेट में एज कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, तो उसमें क्या है, कॉर्पोरेट में तो फिर वो कॉर्पोरेट चार्ज हो जाएगा, पर पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में तो वो सर्विस प्रोवाइड करे सिक्योरिटी। अगर मान लो वो रजिस्टर्ड है, उसकी 20 लाख से क्रॉस कर रही है टर्नओवर, वो रजिस्टर्ड है तो उसको आरसीएम में, उसको फॉरवर्ड चार्ज में डालना ही पड़ेगा, फिर आरसीएम में फॉल नहीं करेगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है और आपको सर्विसेज दे रहा है, फिर आपको आरसीएम में पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जेम्पशन में कहीं फॉल नहीं करता। लीगल सर्विसेज हैं वो एग्जेम्पशन में भी फॉल करती हैं और वो आरसीएम में भी डाल दी उन्होंने, लेकिन इस केस में फॉरवर्ड चार्ज की एग्जेम्पशन नहीं है। इफ ही इज रजिस्टर्ड पर्सन और वो फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज कर रहा है, देन देयर इज नो लायबिलिटी टू बैंक टू पे अंडर आरसीएम। एक और ये है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू कैरी पैसेंजर। बैंक के काम के लिए आपने कोई गाड़ी बुक करी, कहीं काम जाना था, फॉर बिजनेस पर्पज आपने वो खर्चा बुक कर दिया, तो आपको उसके अंदर आरसीएम पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%। अगर वो 12% का इनवॉइस नहीं काट रहा, तो सामने वाला अगर 12% का इनवॉइस काट रहा है तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, तो वो फॉरवर्ड चार्ज भी जाएगा। और अदर देन दैट, अगर वो इनवॉइस नहीं दे रहा या फिर वो एक सिंपल बिल ऑफ सप्लाई दे रहा है या फिर कोई ऐसी वाउचर दे रहा है कि मैंने ये सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं आपको, उसने बिल दे दिया, आपने बिल बुक कर लिया, इट इज यूज फॉर बिजनेस पर्पज फॉर ट्रैवलिंग टू फॉर एनी एम्प्लॉय, तो आपको आरसीएम में वो लायबिलिटी 5% पे पे करनी पड़ेगी। जनरली तो कैश कैरी करने के लिए मंगाते हैं, उसके लिए क्या रेंटिंग है? का कैप भी हो सकता है वैसे। क्या चीज? रेंटिंग का कैप रेंटिंग ऑफ कैब वही है सर, वही है। कैश एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कैरी करने के लिए आती है, उसमें नहीं होगा ना, उसमें भी होगा, उसमें भी होगा। नहीं, इसमें टू कैरी पैसेंजर है, To carry passenger। पैसेंजर वाले में वो फॉल नहीं करेगा, ये टू कैरी पैसेंजर वाली है सर। वो तो है जैसे इंस्पेक्शन के लिए गए, हाँ, कोई और ब्रांच में गए, तो मान लो किसी कस्टमर के वहाँ पे कोई स्टॉक इंस्पेक्शन के लिए चला गया किसी और तो पर्पज, तो वो सारा फॉल हो जाएगा। और एक लास्ट आरसीएम की जो हमारी फॉल करेगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कोई सर्विस कोई बाहर से ली हो किसी ने फॉरेन करेंसी में, इंपोर्ट के केस में क्या होता है, 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सप्लायर जो है वो बाहर होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया, रिसीपिएंट जो है वो इंडिया में होनी चाहिए, हमारे केस में बैंक हो जाएगा, और फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी सर्विस बाहर से ले रहे हैं तो वो इंडिया में, अगर आपने कोई भी सर्विस ले ली, किसी फॉरेन कस्टमर से ले ली या किसी और फॉरेन एजेंट से भी ले ली, अगर आप उसको कोई पेमेंट कर रहे हैं तो आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा उसके। इसके बाद है एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। एग्जम्पशंस के अंदर क्या आता है, नोटिफिकेशन 12/2017, इसके अंदर कई सर्विसेज हैं जो फॉल करती हैं एग्जम्पशन की लिस्ट में। पहला तो आपको बताया गया इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और लोन जो भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, इट इज एन एग्जाम्प्ट इनकम अदर देन द इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी जो है वो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में फॉल कर दी। बैंक अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर ऑफ अंडर पीएमजेवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना में अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंक टू एनी बेसिक सेविंग कस्टमर अकाउंट होल्डर, इट इज फॉलिंग अंडर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017। with business facilitators to bank with respect to accounts under rural area। अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फॉर अकाउंट होल्डर्स सिचुएटेड इन रूरल एरियाज, वो एग्जम्प्ट है। अगर वो रूरल एरियाज में नहीं है तो वो आरसीएम में फॉल कर रहा है।
आरसी में अच्छा, आपसे में ये वाली सर्विस रहती है मेरी, एक रिकवरी एजेंट सर्विस टू बैंक। कोई अगर रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंक को, सीरियल नंबर 8 में फॉल कर रही है, इट इज अ लायबल अंडर आरसीएम। ऐसी ही कोई इंडिविजुअल डीएस है, कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, इंडिविजुअल, नॉट अ प्रोप्राइटर, नॉट अ पार्टनर और एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट। कोई इंडिविजुअल, मान लो आजकल सीएस हैं, सेलिंग एजेंट बैंक से लोन वगैरह कराते हैं अपने कस्टमर्स के, तो आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटर हो और आपने बैंक को सर्विस प्रोवाइड करी, बैंक ने आपको कमीशन दी उस पॉइंट, उस केस में, तो बैंक को आरसीएम में लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी उस केस में। इफ यू आर एन एलएलपी और अ पार्टनरशिप फर्म और अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में आपको फॉरवर्ड चार्ज पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल डीएस से हैं और बैंक आपको कमीशन या कुछ और पॉइंट कुछ दे रहा है, तो द बैंक हैज टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। और एक सर्विस है बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक। बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं जो बिजनेस को इंप्रूव या ग्रोथ करना चाहते हैं, वो किसी कस्टमर के बिहाफ पे बैंक को सर्विस देते हैं और बैंक उनको कमीशन वगैरह चार्ज देता है, उनके लिए कमीशन इनकम हो जाती है बिजनेस फैसिलिटेटर्स की। तो वो अगर कोई बैंक को अगर बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस दे रहा है, then it will be covered under RCM notification। लेकिन एक एग्जेम्पशन दे दी कि बिजनेस फैसिलिटेटर अगर कोई सर्विस दे रहा है और अकाउंट सिचुएटेड इन रूरल बैंक, तो वो एग्जेम्प्ट कर दिया। रूरल बैंक और रूरल एरिया, रूरल एरिया में जो उसमें मान लो कि ब्रांच रूरल एरिया में है पर उसके आसपास कोई नॉन रूरल या अर्बन सेमी अर्बन है और सेम फैसिलिटेटर वो रूरल पब्लिक, तो उसके रूरल के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, उसके लिए आरसीएम में फॉलो को मेंटेन कैसे करना पड़ेगा, वो तो वैसे बताएगा नहीं कैसे नहीं बताएगा फैसिलिटेटर। तो सर आप फैसिलिटेटर के 3-4 काम है, एक तो अकाउंट ओपन करना, ठीक है, नंबर ऑफ अकाउंट ओपन किए बता दिया। सर तो बैंक तो रिकॉर्ड रखेगा ना अपने पास, बैंक को आरसीएम पे करना है, बैंक जिसको पेमेंट करता रहेगा उस पे आरसीएम पे करता रहेगा। दूसरा कैश कलेक्शन करना बैंक के लिए आपका या रिकवरी एजेंट जो भी है, हाँ। नहीं वो फैसिलिटेटर जो है डिपॉजिट करने के लिए छोटे-छोटे कस्टमर वहां जाके जमा कराओ और निकालने वहीं से निकाल लो फैसिलिटेटर से, तो वो भी मैं रूरल और नॉन रूरल देखना पड़ेगा। सर रेजिडेंस, लेकिन आप जिस ब्रांच में जा रहे हो वो तो आपको पता है ना रूरल है, सेमी अर्बन है, अर्बन है। मान लो ब्रांच बिल्कुल ऐसे बॉर्डर पे रूरल सेमी अर्बन वहीं तो होता है। बैंक ही बताएगा ना कि वो रूरल है, सेमी अर्बन है। ब्रांच तो मान लो रूरल है या सेमी सर अर्बन अगर भी है, रूरल ब्रांच है तो उसके पास जो भी अकाउंट है वो एग्जाम है उस केस में। यही मैंने पूछा इसलिए कि वो अगर रूरल, आप इसमें बताया आपने कि वो अगर सर्विसेज रूरल एरिया में दे रहा है, रूरल ब्रांच में, रूरल एरिया की तो ब्रांच है, रूरल एरिया की ब्रांच ब्रांच में दे रहा है। I was under impression कि नहीं, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को। रूरल एरिया के बंदों को नहीं, अच्छा, जो ब्रांच में जिसमें अकाउंट होल्डर्स का अकाउंट खुल गए उस ब्रांच में। क्या वो अर्बन एरिया के अकाउंट है? अब इसमें भी एक इशू है। क्या सपोज हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली में एक फैसिलिटेटर बैठे, बड़े सारे फैसिलिटेटर बैठे हैं और उनके सब एजेंट्स बैठे हैं, वो पेमेंट यहाँ से, जैसे बिहार के बहुत सारे लेबर यहाँ काम कर रही है, वो यहाँ पैसे जमा कराते हैं, पेमेंट होती है रूरल में, या वहाँ उनके अकाउंट से पैसे यहाँ विड्रॉ होते हैं, अकाउंट बिहार में है या किसी गांव में है, बिहार में छोड़ो, यूपी में है, कहीं भी है, तो उसकी पेमेंट विड्रॉ भी यहाँ हो रही है और पेमेंट को जमा भी यहीं करा रहा है, लेकिन अकाउंट वो ओपन गांव की ब्रांच में है बहुत सारे होते हैं, उस केस में क्या होगा? ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ ब्रांच इन दिल्ली बट अकाउंट नहीं सर, उस केस में पेमेंट कौन करेगा बैंक को? बिजनेस फैसिलिटेटर को। तो ये वाली ब्रांच करेगी, ये क्यों करेगी? क्योंकि इसने अपना फैसिलिटेटर अपॉइंट किया है, फैसिलिटेटर इज अपॉइंटेड विद अ ब्रांच, ठीक है, राइट, एंड सर्विसेज आर अकाउंट ओपन कर लो, तो चलो आसपास के लोग अकाउंट ओपन ठीक करेंगे, है, कलेक्ट डिपॉजिट अगर कोई करना है तो कलेक्शन कर लो, उसका अकाउंट कहीं भी किसी ऑल ओवर इंडिया किसी ब्रांच में वो कलेक्ट करेगा, विड्रॉ करनी है किसी ने, कहीं भी किसी भी ऑल ओवर इंडिया का ब्रांच का अकाउंट है वो विड्रॉ भी करेगा यहाँ तक उससे फैसिलिटेटर के थ्रू, लोन्स वगैरह वो के यही हो गए, वो एग्जाम मान लेगा। वो एग्जाम कैसे इसमें मानेगा? स्पेसिफिक ये लिखा है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स विद रूरल एरिया ब्रांच। ब्रांच को सपोज हम किसी अशोक विहार की बात कर रहे थे, अशोक विहार में ब्रांच है बाहर ना लो, तो अकाउंट उस ब्रांच से पैसे विड्रॉ तो उसके रूरल एरिया के ब्रांच से होते ना, विड्रॉ तो यहीं से कर रहा है ना, अकाउंट तो वहाँ का है। अकाउंट वहाँ का है, तो ये मेंटेन कैसे होगा?
और हम कैसे चेक करेंगे? बैंक से सर बेसिकली एज एन ऑडिटर ना आप सबसे पहले इसको देखिए आप उसको आरसीएम में डालने की कोशिश करेंगे। वो ही इज द वन हु विल एक्सप्लेन यू कि दिस इज नॉट लायबल टू आरसीएम, उसके लिए जस्ट वहाँ उस समय डिबेट हो जाएगी, वो क्या देखिए हम सर्विसेज तो हम देते हैं, हमारी ब्रांच का फैसिलिटेटर है वो तो एग्जाम उसमें अच्छा वो तो कहेगा एग्जाम पे नहीं आएगा, हम तो कहेंगे सारा सारा हो सकता है यहाँ पर सारा ही टैक्सेबल हम मेरा कहेंगे सारा आरसीएम है, तो ही विल हैव टू जस्टिफाई। हाँ वो बैंक पे जस्टिफाई करेगा उस चीज को कैसे करना है। लेकिन हमें तो अकाउंट डिटेल से तो हम बता नहीं पाएंगे, ये रूरल एरिया का है, वो तो बैंक ही बताएगा ना हमें। तो अगर वो लेकिन वो तो बैंक तो अपनी जानकारी में 100% पे आरसीएम पे कर रहा होगा। हो सकता है सर। दिल्ली में बैठे हो आरसीएम कौन ऑल ओवर इंडिया कहाँ कौन कौन ब्रांच के कौन से डील हुआ, आई डोंट थिंक वो टेक दैट। हाँ रूरल ब्रांच की जो अगर कोई ऑडिट आया तो उसमें ये दिक्कत आ सकती है, उसमें आप बोलिए उसमें बोलेंगे वो कहेगा मेरी सारी एग्जाम है मेरी एकदम सर। हाँ उसमें ये हो सकता है कि वो दूसरी ब्रांच की कोई वो सब अर्बन ब्रांच के अकाउंट से सबको हम ही गए ऑडिट करने, रूरल ब्रांच मिली हुई है, हम्म। हमें पैसों की जरूरत पड़ गई, हमने वहीं से निकाल लिया उस फैसिलिटेटर के थ्रू, हमारा अकाउंट तो रिलीज नहीं था ना, ठीक है पर वो ब्रांच कहेगी हमारा तो जो भी रूरल है एग्जाम है। उसमें और ये क्लियर करने की जरूरत है कि हमें उसने पूरी ट्रांजैक्शन डिटेल पे जाके किस ब्रांच के अकाउंट से पैसे निकले या जमा हुए, ऊपर से तो सर मुझे लगता है इतने टाइम में हम इतनी डिटेल में जा नहीं पाएंगे। वो तो एक क्वेश्चन रेज करना चाहिए। हाँ वो तो दिखा दे अपनी डिटेल दे दे, हाँ। रूरल के कौन से हैं अर्बन के कौन से नहीं बता दे। वो तो एक्सेल में दे रहे हैं, अब इसमें हाँ? देखो एक अच्छा पॉइंट है, एक अगर है रूरल ब्रांच है तो अच्छा पॉइंट। अगर ये एक और सर्विस है, सर्विसेज बाय एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू ₹2000 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन पेड टू एनी कार्ड। कोई कार्ड की पेमेंट है 2000 से नीचे की सेटलमेंट हो रही है तो वो एग्जाम सर्विस में फॉलो कर देगी। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ अ कंट्रीब्यूशन और ये अंडर जो सेटलमेंट है मतलब कोई सेटलमेंट एजेंट के थ्रू हो रही है तब की बात है, वो किसी से भी थ्रू होगी। मतलब अगर बैंक उन्होंने जो लिखा है एक्वायरिंग बैंक की जो डेफिनेशन आप पढ़ोगे उसमें लिख दिया एनी बैंक, एनबीएफसी और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी पर्सन। एक ब्रांच है, मान लो मेरा ही क्रेडिट कार्ड है और मुझे लगता है एक गलत ट्रांजैक्शन हो गई तो बैंक नहीं मान रहा, फिर अल्टीमेटली सेटलमेंट पे हो गया, डायरेक्ट बैंक की ब्रांच से सेटल हो गया, तो सर्विसेज किसको मिली? मेरे को बेनिफिट हुआ ना, हाँ तो सर्विसेज हाँ, बैंक को मिली, बैंक ने दी सर्विसेज वो आरसीएम में जाएगा। सर वो 2000 तक एग्जाम कर 50,000 की बात है, तभी तो वो 2000 के लिए तो शायद इतना वो लगेगा फॉरवर्ड चार्ज करेगा ना आपसे चार्ज, बैंक फॉरवर्ड बैंक चार्ज, पर चार्ज करेगा ना तो 2000 तक आरसीएम में नहीं है, तो तो आरसी में एग्जाम में एग्जाम में डाल दिया 2000 तक इन्होंने। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन आ रही है उसकी जो कलेक्शन हो रही है उसकी सर्विसेज पे एग्जाम्प्ट है, और कोई भी ऐसी पेंशन स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट की है तो उसके ऊपर भी हम एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कॉल करते हैं। सुकन्या वगैरह भी सब एजेंट में आएंगे, सुकन्या स्कीम वगैरह सिर्फ ये दो स्कीम्स हैं, अटल पेंशन या कोई पेंशन स्कीम एंड प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, पेंशन स्कीम। इसके बाद सर आ जाते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। कई सर्विसेज हमारी जो फॉल करती हैं उस पर वैल्यू क्या होनी चाहिए। रूल 32 है, फॉरेन करेंसी की जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जिस पे जीएसटी चार्ज होना है। इसके अंदर दो क्लॉजेज हैं, दोनों क्लॉज के अंदर हम किसी भी क्लॉज में हम फॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हम वो चेंज नहीं कर सकते। हमने अगर ये मेथड फॉलो कर लिया तो ये मेथड फॉलो करना है, दूसरा कर लिया तो दूसरा फॉलो करना है। ये नहीं है कि किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर वो कर लिया किसी पे वो कर लिया। अगर एक ट्रांजैक्शन अगर स्टार्टिंग में हमने एक मेथड फॉलो कर लिया तो पूरे साल के लिए वही मेथड यूज करना पड़ेगा। पहला मेथड है, अगर कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन अगर हम कोई बैंक किसी में डील कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या निकालनी है। पहला मेथड उन्होंने दे दिया डिफरेंस ऑफ द बाइंग या सेलिंग रेट विद रेफरेंस टू द आरबीआई रेफरेंस रेट। आरबीआई का जो रेफरेंस रेट है और बाइंग या सेलिंग रेट है उनका जो डिफरेंस है वो माना जाएगा। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट हमारे पास नहीं है तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट चार्ज। ये है हमारा पहला मेथड। आरबीआई रेफरेंस रेट
माइनस बाइंग या सेलिंग रेट जो एक्चुअल में बैंक चार्ज कर रहा है उनका डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर हमारे पास आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट चार्ज। और अगर जो ट्रांजैक्शन अगर हम कर रेफरेंस रेट तो आते ही नहीं नहीं आता। है, नाम बदल गया है ना। तो ये अगर ये कंडीशन है, ये मेथड है अगर एनी वन ऑफ द करेंसीज INR, अगर बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो अगर INR है तो ये वाली मेथड फॉलो करेंगे। अगर दोनों ही करेंसी INR नहीं है, मान लो यूरो से हम डॉलर कर रहे हैं, डॉलर से येन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम करेंगे 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट्स एक्सचेंज इन इंडियन रुपीस। दोनों में से हम दोनों का डॉलर और यूरो में से दोनों को हम INR में कन्वर्ट करेंगे, उसमें से जो इंडियन रुपीस में लेस होगा उसका 1% हम चार्ज कर लेंगे। ये है अदर देन अगर INR दोनों करेंसीज हम ट्रांजैक्ट करते हैं। ये है पहला मेथड 1% वाला। क्लॉज बी है, इसके अंदर दूसरा मेथड उन्होंने दिया, अगर फॉरेन करेंसी के अंदर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इसके अंदर पहला पॉइंट है अगर 1 लाख से कम है अमाउंट तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट और मिनिमम 250 रुपीज हमें चार्ज करने का। 1% अप टू 1 लाख रुपीज और 250 रुपीज विच एवर इज हायर। ठीक है, दिस विल बी Whichever is higher. वैल्यूएशन दिस विल बी द वैल्यूएशन। टैक्सेबल वैल्यू उसके ऊपर है मिनिमम 250 करनी है चार्ज, अगर उससे ज्यादा तो ज्यादा चार्ज करेंगे, मिनिमम तो 250 लगेगी अप टू 1 लाख रुपीज। अगर 1 लाख से 10 लाख तक उन्होंने कहा 1000 तो आपका 1 लाख तक हो गया 1%। ठीक है, 1000 प्लस 0.5% ऑफ अमाउंट अप टू ₹10 लाख ओवर एंड अबव 1 लाख, क्योंकि 1 लाख तक तो 1000 चार्ज हो गया। 1000 के ऊपर और 1 लाख से 10 लाख के बीच में जितना अमाउंट होगा उस अमाउंट का 0.5%। ठीक है, उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। नहीं अभी उसके बाद है। तो ये कितना हो गया, 1 लाख से 2 लाख 10 लाख तक 9 लाख रुपए हो गए। 9 लाख का आधा परसेंट हो गया 4,500। 1000 वो 4500 ये। अब थर्ड लिमिट आएगी 5500 प्लस हाफ 1/10 ऑफ द ग्रॉस अमाउंट और मैक्सिमम 60,000 रुपीज। 10 लाख से ऊपर जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर 1/10% लेना है और 5500 रुपए तो पिछले ऐड कर ही लिया हमने, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60,000 रुपीज हम चार्ज करेंगे। मैक्सिमम 60,000 5500 के अलावा के 60 या टोटल 60? 5500 प्लस 60 5500 plus 60. Any option you can choose at the beginning of financial year. During the year you cannot change your method. इसके बाद एक important point है place of supply का। Place of supply सबको पता है क्या होगी बैंक के केस में? Anyone? लोकेशन ऑफ ब्रांच Location. अगर तो आपके पास एड्रेस है। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो आपका जो रिसिपिएंट का लोकेशन है वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अदरवाइज आप मान लो रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी चार्ज, आपके पास जीएसटी नंबर है, आपने बैंक में अपना जीएसटी नंबर दे दिया, आपका रजिस्ट्रेशन है हरियाणा में है, दिल्ली ब्रांच में आपका अकाउंट है, तो बैंक विल चार्ज आईजीएसटी। आपका एड्रेस भी अगर चढ़ा हुआ बैंक में, इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, आपका एड्रेस भी अगर रिकॉर्ड में है, देन आल्सो द बैंक विल चार्ज जीएसटी एज पर द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ योर एड्रेस। और अगर लोकेशन नहीं है, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, बैंक के पास एड्रेस नहीं है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है दैट इज द बैंक, तो वो लोकल बिल काट के आपका आईजीएसटी और सीआरएस चार्ज करके कंप्लायंस पूरा करिएगा। और अगर आउटसाइड इंडिया के कोई अकाउंट होल्डर्स हैं, कोई फॉरेन अकाउंट होल्डर्स हैं, एनआरओ एनआरई अकाउंट्स हैं आपके बैंक में, देन आल्सो द लोकेशन ऑफ सप्लायर दैट इज द बैंक प्लेस ऑफ बिजनेस दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लायर एंड बैंक विल चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। एक रूल 47 है, टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब इशू होना चाहिए आपको? नॉर्मली क्या केस है, वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए? सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद 30 डेज के अंदर 30 डेज के अंदर। और गुड्स के केस में एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। बेसिकली। लेकिन बैंकिंग के केस में उन्होंने 45 डेज का टाइम दे दिया। 30 डेज की जगह 45 डेज के अंदर आपको जीएसटी जो इनवॉइस आपको इशू करना ही करना है।
और इफ विद इन द सेम पैन, अगर एक ही पैन पे अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, then the bank has option may issue invoice before the supply or at the time of booking in the records and the books of accounts or before the expiry of the quarter. जिस क्वार्टर में ट्रांजैक्शन हुई है उस क्वार्टर के एंड तक वो बिफोर द एंड ऑफ द क्वार्टर या फिर बिफोर द सप्लाई या फिर बुक्स में जब रिकॉर्ड कर लिया तब इनवॉइस वो काट सकता है। इट इज ओनली द केस विद इन इफ द ट्रांजैक्शन इज विद इन द सेम पैन, मतलब कि इंटर ब्रांच अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस केस के अंदर इनवॉइस इशू करने के लिए ये टाइम लिमिट दे रखी है रूल 47 के अंदर। इसके बाद है एटीएम। एटीएम को क्या रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करना चाहिए, एडिशनल प्लेस में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? कोई एटीएम करेंसी ही एग्जैक्ट सर्विसेज ही दे रहा है ना, करेंसी का इसी ऑपरेशन हो रहा है। कभी-कभी एटीएम बहुत सारी और सर्विसेज भी देता है। तो ब्रांच एटीएम की बात कर रहे हैं। हाँ, जो अदर देन ब्रांच के बाद पास ब्रांच के साथ नहीं है, कहीं और लोकेशन है। क्या बैंक को एडिशनल प्लेस में वो एटीएम की जो प्लेस है वो डालनी है मैंडेटरी है या नहीं? मेरे हिसाब से अगर सिर्फ और सिर्फ करेंसी वाली ट्रांजैक्शन है तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? दूसरा एग्जाम सप्लाई और कोई रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस में कौन कौन से प्लेसेस आनी चाहिए हमारी? exempt वाले भी आते हैं। If you are providing exempt services, then also registered तो कराना ही है। नहीं, जीएसटी लॉ में ये कहता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन के अंदर वही प्लेस डालनी है जहाँ से आप टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी टैक्सेबल सर्विसेज, देन यू डोंट हैव टू रजिस्टर एट द सेम प्लेस इन योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो एटीएम के अंदर आपकी क्या है, आपने कोई टैक्सेबल सर्विसेज वहाँ से प्रोवाइड नहीं हो रही, या तो मनी डिपॉजिट हो रहा है या मनी विड्रॉ हो रहा है या आपका कोई एटीएम का पिन चेंज हो रहा है या फिर कोई और इंक्वायरी स्टेटमेंट आप निकाल रहे हैं कुछ, ठीक है ना? चार्जेस ले रहे हैं ना, उसके चार्जेस ना लेते हैं। सर्विस लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंट्स में जो नेचर ऑफ अकाउंट भी बदल डालते हैं, सेविंग करंट की जगह सेविंग क्लिक कर दिया, उसके भी चार्जेस लग रहे हैं। एटीएम से मतलब बेसिकली करंट अकाउंट की जगह सेविंग सेलेक्ट हुआ तो उन्होंने दे चार्ज पेनल्टी प्लस डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, लेकिन चार्जेस लगते हैं। अगर चार्जेस लगते हैं टैक्सेबल है तो फिर वहाँ पे उनको एडिशनल प्लेस में डालना पड़ेगा। लगते हैं चार्जेस। कुछ ही बैंक है कोई चार्ज नहीं है, लेकिन सर फिर वो मुझे लगता है वो सिर्फ उनके बैंक में अंदर ही होंगे एटीएम। सपोज इस बिल्डिंग के सामने अक्रॉस द रोड एटीएम है, अलग हो गया ना, एड्रेस अलग हो गया, बराबर वाली प्रीमिसेस में है, एड्रेस अलग हो गया, एड्रेस अलग हो गया तो अलग हो और वो गया। चार्जेस ले रहे हैं। चार्जेस अगर लगते हैं। चार्जेस ले रहे हैं तो टैक्स नहीं लगा सकते बिना उसके, फिर एडिशनल प्लेस में दिखाना पड़ेगा। और अगर कई जगह है कि थर्ड पार्टी एटीएम्स भी हैं, तो थर्ड पार्टी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था गवर्नमेंट ने ही, सीबीआईसी ने, कि थर्ड पार्टी एटीएम जो हैं इट इज नॉट अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर बैंक्स, वो थर्ड पार्टी के अंदर आते हैं। देन वी डोंट हैव टू टेक एनी रजिस्ट्रेशन और वी डोंट हैव टू मेक इट एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन आवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कैसे पता चलेगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो थर्ड पार्टी है, उसका सिर्फ काम रीपब्लिशिंग है, वो है पैसे मतलब जमा करना, रीपब्लिशिंग। फीडिंग ऑफ एटीएम क्या कह रहे हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ उसको कैश रिप्लेस करके जाते हैं, खाली उन्होंने जमा कर दिया, जमा ज़्यादा उधर निकाल दिया। ठीक है सर, और एटीएम तो हमारा है, वो तो सर्विसेज अलग से होगी ना। वो तो सर सर्विसेज वो तो उनकी देखना पड़ेगा ना, वो हमारे उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं फॉल करती। मतलब एटीएम तो हमारा ही है, एटीएम हमारा है, वो कोई इशू नहीं है सर, और वो जो हमें सर्विसेज दे रहे हैं वो अलग से सर्विस है। वो कोई इशू नहीं, वो उसमें हमारा कोई इशू नहीं। गोइंग बाय दिस थिंग, अगर हम अदर बैंक्स के एटीएम से निकाल रहे हैं, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं हो रहा है,
मतलब you close that highway. मैं समझ गया मिनिमम एंड ट्रांजैक्शन Going by that thing, technically वो ATM भी दूसरे क्लाइंट को लेकिन चार्ज कर रहे हैं. शेयरिंग भी है कि आपस में एटीएम बैंक टू बैंक। हाँ शेयरिंग भी है वो चार्ज ऐसे नहीं कर सकते अगर वो उनका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो वहाँ पे उनको चार्ज नहीं करना पड़ेगा अगर वो चार्ज हो रहा है वहाँ पे तो फिर वो एडिशनल प्लेस पे चेक करना पड़ेगा ऐसे भी कर सकते हो इसके बाद इम्पोर्टेंट है एक उनका स्टॉक रजिस्टर चेक करना उनका फिक्स एसेट रजिस्टर चेक करना कोई फिक्स एसेट के अंदर ऐसी कोई आइटम ना हो जिसके अंदर उन्होंने इनपुट ले रखा हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर 17(5) का कोई इनपुट हो वो ना ले रखा हो किसी ने किसी बैंक ने कोई रिपेयर या मेंटेनेंस कर रखा हो if it is debited to P&L account then the ITC available if it is capitalized in the books of accounts और वो assets में capitalize कर दिया तो उसका ITC नहीं मिलेगा ये फर्नीचर आतो ये फर्नीचर के केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग के केस में फर्नीचर फिक्चर में तो इनपुट मिल जाएगा और वो भी 50% का जो अगर क्लॉज फॉल करता है तो वो मिलेंगे या फिर 42-43 सर्टिफिकेशन लाना पड़ेगा एक उनके साथ टर्नओवर रिकंसिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो 990 के अंदर टर्नओवर रिकंसिलिएशन जाती है उनकी दैट वी हैव टू चेक कि वो टर्नओवर रिकंसाइल कैसे कर रहे हैं क्या उसके अंदर आइटम जो रिकंसिलिएशन पार्ट बना रहे हैं और क्या उन्होंने एग्जाम सप्लाई दिखा रखी है एग्जाम्स के अंदर और उसमें क्या उन्होंने टैक्सेबल सप्लाई दिखा रखी है नहीं बताइए तो सेंट्रलाइज है अच्छा वो भी दिसंबर में होगी सर इस साल के दिसंबर को होगी दिसंबर में तो होगी पर अभी तो बुक तो फाइनल करनी पड़ेगी ना उनकी बुक तो फाइनल लेकिन 990 तो ये कहते हैं 990 तो अवेलेबल हो गई है आप अपनी रिकंसिलिएशन तो कर सकते हैं क्या उनका टैक्स जो है टैक्सेबल सर्विसेज जेम सर्विसेज टोटल जो है उनकी बुक्स में जो टर्नओवर है क्या मैच कर रही है नहीं कर रही बाद में 990 तो बाद में भरी जाएगी वो कोई इशू नहीं है आप भी कोई पॉइंट निकाल के वहाँ पे दे दो कि ये तो टैक्सेबल ये तो इनकम मैच नहीं कर रही है आपकी बुक्स के साथ फिर कैसे करेंगे रिकंसिलिएशन का उनके पास कोई डाटा तो होगा ना सर कि ये सर्विसेज जो है ये एग्जैक्ट की थी ये हमारी टैक्सेबल थी इनको टोटल करेंगे तो ये टर्नओवर हमारी बुक्स में आ रही है अब क्या उसमें रिकंसिलिएशन का पार्ट बन रहा है 990 बाद में जाएगा पर बैलेंस शीट में तो आ रहा है हाँ बैलेंस शीट में तो बैलेंस शीट आएगा में बताएगा एग्जाम का नॉन एग्जाम बताइएगा वहीं तो उसकी वो है ना हम्म। पर वो जवाब कुछ नहीं है क्योंकि वो सेंट्रलाइज नहीं है मुझे पता वैसे भी सर जीएसटी तो स्टेट अगर पूरी स्टेट का एक ही होगा मान लीजिए कि स्टेट में उनकी 50 ब्रांचें हैं कैसे करेगा ब्रांच वाइज ब्रांच वाइज कैसे करेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिटर्न तो पूरी स्टेट की एक ही जाती है ठीक है सर और आप तो मिली है 4 ब्रांचें दो ही मिलती है तो है अब तो दो ही मिलती है हाँ मैक्सिमम कोई नहीं नहीं है सर उनका 3 का डाटा तो आप कुछ तो चेक करोगे नहीं करोगे वो भी इसी तरह का है बेसिकली पूरे नॉर्मल जो भी जाता है मैं समझ गया आपकी बात जीएसटी रिटर्न से तो चेक करना बहुत मुश्किल है ये स्टेट रिटर्न के तो नहीं करोगे अपनी बैलेंस शीट से तो कहीं नहीं बैलेंस शीट में तो कहीं ना कहीं आपको रिकंसाइल करना ही पड़ेगा ना अल्टीमेटली जो सेंट्रलाइज ऑफिस के लिए जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है या गलत है वो तो देखना है वो तो चेक करना ही आपकी रिस्पांसिबिलिटी है जो उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन उन्होंने सेंट्रलाइज ऑफिस को भेजी कि दिस इज एग्जाम दिस इज टैक्सेबल दिस इज अंडर आरसीएम वो सही है या गलत है वही देखना है मेरे को यस 990 से क्या हो रहा है वो सेंट्रल ऑडिटर वो देखेगा तो सेंट्रल ऑडिटर देखेगा बाद में देखेगा वो तो हमने तो उसका कोई इशू नहीं है बैंक ऑडिट के लिए तो जीएसटी तो इतना ही क्वेश्चन है इसके अलावा तो कोई आप पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं तो बताइए इसमें तो सर आपको ना सैंपल क्वालिफिकेशन या एक ऑब्जर्वेशन के लिए फॉरवर्ड मतलब प्रैक्टिकली हमने जो डिस्कस किया ना काफी नॉलेजेबल है लेकिन ये तो हमारी समस्या उल्टा बढ़ा रहा है वहाँ पे जाके सर प्रैक्टिकली आप जिस तरह मैंने कहा वहाँ जाके तो आरसी वेरी फ्रेंकली आरसी में छोटी जीएसटी भी याद नहीं आती ठीक बात है तब तो मोटे मोटे चीजें होते हैं वहाँ पे तो एनपीओ और एमओसी पे चल रहे होते हैं हाँ समझ गया सर क्योंकि अगर हम उनको एडवांसेस को कासा डिपॉजिट्स को छोड़ दें तो उनकी वैल्यू को छोड़ने से बेटर है अगर हम उसमें जीएसटी कोशिश कर सकते हैं कुछ लगाने की और वी आर मोर रिक्वायर्ड टू प्रोक्यूर 3-4 points of observations ready-made language it is being a branch they don't have any data related to
check. ठीक है, इस तरह के कुछ आप वो मैं शेयर कर दूंगा, आप share कर सकते हैं। मैं शेयर कर दूंगा कोई इशू नहीं। हाँ, जी। क्योंकि 2-3-4 पॉइंट्स एक ऑब्जर्वेशन के कि हम बैंक से इनको ठीक करवा लें या जैसे भी कर लें कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है या क्या है। भाई this week on the branch तो कह रहे वहाँ जाके हम तो हमारे पास तो इतना ध्यान भी नहीं रहता वहाँ जाके तो कोई बात है, एडवांस में घुस जाते हैं। वहाँ तो टैक्स ऑडिट भी सबसे लास्ट में करनी है। मोटी अमाउंट दिख रही होती है ना मान लो उस टाइम पे फिर मैनेजर भी होता है सर रहने दो सर छोड़ दो एनपी में ज्यादा ध्यान रखना। एनपी पे ज़्यादा ध्यान रखो सही बात है। एनीथिंग एल्स सर कोई और डाउट? आपके हिसाब से कुछ और एग्जांपल्स के साथ ये डिस्कस कर लेते हैं 73-74 का क्या चल रहा है आजकल आपके यहाँ? कर लेते हैं। We have time up to 5:15 for the last minute. तो जो आजकल इश्यूज उठ रहे हैं मेनली तो जो एक क्वेश्चन है स्पेसिफिक अपील्स का 3 महीने का पीरियड अगर ये एक्सपायर हो गया है तो इज इट अलाउइंग टू सबमिट अपील और नोट आस्किंग फॉर समथिंग? नहीं वो अपील तो फाइल हो जाएगी पर वो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा विदाउट कंफर्मेशन ऑफ अपील। वो 30 डेज के लिए था ना। हाँ तो सर वो मैनुअली बेसिकली मैनुअली क्या हो गया? वो कंफर्मेशन ऑफ डिले आपको साथ लेके जाना पड़ेगा और रीजन बताना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं फाइल कर पाए। तो डिपार्टमेंट ने तो अभी बहुत नोटिस लास्ट डेट पे निकाल दिए 27 28 29 दिसंबर को। तो जब कोई तीसरा पोर्टल खोलो जीएसटी का नोटिस आ रहा शोकस नोटिस का ऑर्डर आ जाता है तो हमने क्या किया सबमिटेड ऑल्दो रिप्लाई सर सबके सबमिटेड थे। हम डिपार्टमेंट मिलके आए उनका एक ही जवाब था सर हमारे पास टाइम नहीं था पढ़ने का हमने बस ऑर्डर निकाल दिया आप ऑर्डर पे चेक कर लो आप अपील कर लेना अपील में जीता है। रेक्टिफिकेशन भी नहीं ले रहे सर रेक्टिफिकेशन आपकी 3 दिन तो स्ट्राइक करी एडवोकेट्स ने स्ट्राइक करके डिपार्टमेंट बना रखा है यहाँ पे। वेरिफिकेशन अपील कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन आ गई है पर देखो जितने कितने ऑफिसर मैक्सिमम लोग तो अपील फाइल कर ही चुके हैं सर। 21 तारीख को तो क्लैरिफिकेशन आई और रेक्टिफिकेशन मैं वही कह रहा हूँ सर 21 से पहले तो लोग अपील फाइल कर चुके थे कितने लोग तो और अब कितने लोग रेक्टिफिकेशन की वेट करते हैं या क्या करते हैं क्या नहीं करते तो बस अच्छा रेक्टिफिकेशन में ये भी है कि अगर अपील फाइल कर रखी है तो इट इज नॉट वैलिड। अब वही दिक्कत आ रही थी सर अब 70 एक तो दिक्कत ये है सर 74 में कर रहे हैं अब तो नोटिस सारे किसी का जीएसटी ऑडिट चल रहा है डिपार्टमेंट का ऑडिट चल रहा हो किसी क्लाइंट का। हमारे केस में सर डिपार्टमेंट का ऑडिट चल रहा है 17-18 से लेकर 21-22 तक का। उस केस में उन्होंने क्या कहा कि 17-18 पुलिस का टाइम लैप्स हो चुका है नोटिस निकालने का चौकस तो वी विल डू इन 74। तो कहते हैं 2 साल 74 और बाकी 73 नहीं कर सकते हम सारे सालों का 74 करेंगे। अब ये देखो सर कोई पॉइंट अगर निकल भी गया किसी डिमांड का एंड वो सिर्फ क्लरिकल मिस्टेक की वजह से हुआ तो उसमें एंटिटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी सर कुछ भी नहीं। एक तो ऑफिसर ये कहता है सर आपने 990 फाइल कर दी आपने जितना टैक्स पे करना था कर दिया अब हमने कोई ऑडिट में पॉइंट निकाला है तो ये मतलब आपका फ्रॉड था आपने टैक्स छुपा लिया हम तो 74 करेंगे। डिपार्टमेंट एक अलग लेवल पे चल रहा है आज की डेट में। वो कहता है कि कह रहे हमारा पीछे से प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट कहती है ये नोटिस अब सर प्री डिपॉजिट में कितना पैसा कमा लिया गवर्नमेंट इतनी अपील्स फाइल हुई हैं इतनी अपील्स सर मिनिमम 50-60 लाख से कम तो डिमांड नहीं थी किसी की 10% प्री डिपॉजिट भी जमा करा लिया तो अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया गवर्नमेंट और उसमें से भी मुझे लगता नहीं कितने लोगों का केस छूटेगा। मैक्सिमम केसेज जो है वो हमारे यहाँ 3B कैंसल्ड 3B नोटिफाइड वेंडर कैंसल फ्रॉम बैक डेट 2A में दिखेगा आपका इनपुट 2A का इनपुट ज़्यादा कम है 3B का ज़्यादा आ रहा है। फिर वो कहते हैं कि सर्कुलर 183 मानते हैं हम कहते हैं सर्कुलर हम नहीं मानते। ऑफिसर ये भी थे सर और किसी स्टेट में गए कहते हैं हम सर्कुलर नहीं मानते क्या ये बता दो कहाँ मानने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नोटिस तो बड़े अजीबो गरीब से भी आए हैं। बहुत अजीब आया आपने इनपुट इतना लिया ज्यादा लिया हाँ। चलो 3B में ज्यादा लिया 9C के हमने रिवर्स कर दिया तो जितना ज्यादा लिया था जितना रिवर्स किया था दोनों में ऐड करके सर हमारे क्लाइंट का शुरू से एक सिस्टम फॉलो कर रहे थे टोटल इनपुट लेके जितना इनएलिजिबल है वो रिवर्स कर रहे थे। नेट आईटीसी का वेट था वो सिर्फ मान लो अगर 2A के अंदर 100 रुपये भी दिख रहा है
उनका रिवर्स 3B में अवेल किया 120 रुपये, रिवर्स कर दिया 80 रुपये, 40 रुपये अवेल कर लिया। सर डिपार्टमेंट को हमें 1 साल हो गया समझाते सर ये हमारा नेट ITC अवेल सिर्फ 40 रुपये है, 2A में 100 रुपये दिख रहा है। वो कहता नहीं आपने 120 लिया क्यों? सर आप बताओ क्या करें उनका डिपार्टमेंट? कह रहे आपने 120 लिया क्यों? हम नहीं मानते, आपने 2A से ज़्यादा ले कैसे लिया? हमने कहा नेट ITC या वेट तो इतना ही है, गवर्नमेंट को लॉस क्या हुआ? कह रहे हमें नहीं पता, आप 120 रुपये लिया तो ये बता दो। अब जब पीछे अगस्त 2022 से इन्होंने सर्कुलर निकाल दिया गवर्नमेंट ने कि आपको इनपुट जो अवेल करना है एज पर 2B करना है, 2B में जितना इनपुट आ रहा है उसमें से जो इनएलिजिबल है वो रिवर्स कर दो, अवेल तो पूरा ही करना है। अवेल पूरा करना है। अब गवर्नमेंट खुद क्लैरिफिकेशन निकाल के ये बोल रही है और डिपार्टमेंट हमें कह रहा है कि आपने ज़्यादा क्यों ले लिया। हमारे का हमने कहा बुक्स में टोटल इतना था, उसमें से ये इनएलिजिबल रिवर्स करके अवेल कितना कर रखा है, नहीं मान रहा सर। जो नोटिसेस डेथ केस में डेथ होने के बाद नोटिस आ रहा है उसका क्या है? डेथ होने के बाद अगर कोई नोटिस आ रहा है सर वैसे तो प्रोसीडिंग काउंट खत्म हो जानी चाहिए। क्या लिखे? लिख के दे दो सर कि जो है पार्टी थी वो उसकी डेथ हो गई है, एंड वी क्लोज द प्रोसीडिंग। अब कोई और रिस्पांसिबल होना बनेगा। लीगली पे कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। अभी मैंने एक रिप्लाई किया सर, बेसिकली मैंने तो यही सर पैन नंबर उसका एक ही बंदे का पैन नंबर कोई पार्टनरशिप कोई फर्म होना कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म होगा सर, तो पैन नंबर उसका गलती उसने करी, दूसरा बंदा क्यों पूछेगा? ये लीगल हायर तो होगा सर इनकम टैक्स में तो होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी तो लाइबल होगी ना। इनकम टैक्स टैक्स में भी काम किया है। होती है। इनकम टैक्स में भी आप दे दो कि ये ऑलरेडी इसकी डेथ हो चुकी है। नहीं, इनकम income टैक्स में भी नहीं ऐसे। नहीं इनकम टैक्स में उसकी बस कोई प्रॉपर्टी है उसका बैंक अटैच कर एक सकते हैं। इशू है इनकम टैक्स में, नोटिस जो है वो लीगल हायर के नाम से होना चाहिए। आप उनको लीगल नाम नोटिस से कहा नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। तो वो सर वो लीगल है, वो लीगल है पता तो तब चलेगा ना जब बंदा उसको पता हो कि मर गया। उनको क्या पता बंदा जिंदा है अभी मर क्योंकि गया। इसमें मैंने केस कराया हुआ है स्पेशली, सर जिस साल डेथ होती है डेथ होने के बाद केस हुआ है। रिटर्न तो ER करता है क्योंकि लीगल हायर वो ये कहते हैं ना कि जब आप उनकी प्रॉपर्टीज ले रहे हो तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। असेसमेंट भी होती है। उसके पहले का भी अगर कोई सपोज 23-24 फाइनेंशियल ईयर में किसी की डेथ हुई, 23-24 की ठीक है रिटर्न लीगल हायर ने भरी, 24 उससे पहले से 18-19 का अगर कोई नोटिस आ गया आफ्टर द डेट ऑफ डेथ, आप सिंपली आपको ये कहना कि नो मोर, कोई मतलब फर्दर हाँ तो वो दोबारा फिर वो लीगल हेयर के नाम से नोटिस इशू करेंगे। वो अलग बात है। अगर आप ये वो तो बताओगे cash होगा। उन्हें तो वो लीगल, क्योंकि वो इनकम टैक्स का ये मानना है कि जब आप उनकी प्रॉपर्टीज आप ले रहे हो तो आपकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी हैं। पर वो फिर टाइम लिमिट भी तो आएगी। मान लो लास्ट पॉइंट पे उसने नोटिस इशू किया और डिसीज्ड है, वो तो फिर वही आपने कह दिया, आपने आपको तो ये कहना कि इज नो मोर ऑलरेडी बस मैम राइट खत्म। नहीं 3 होता, साल 5 साल निकल गए खत्म। नहीं होता। अभी मैंने एक रिप्लाई इवन इन केस ऑफ मर्ज एंटिटी भी होता है कि अगर आपकी कोई कंपनी किसी में मर्ज हो गई है तो भी आप केस खोल मर्ज सकते हैं। केस में तो मैम वो केस अलग होगा। नहीं लीगल हायर मतलब मैंने तो आप क्या कह रहे हो? इनकम टैक्स केस कराया है इसमें मैंने भी रिप्लाई किया है कि प्रोप्राइटर एक्सपायर्ड और लीगल हियर इज येट टू टेक कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। आपने कोई बिजनेस ट्रांसफर तो नहीं करा ना अभी तक? आईटीसी का फॉर्म भरा? नहीं इसको आईटीसी 03 जाता है जो नहीं उसके अंदर होता है ना कि आप इनपुट ट्रांसफर कर रहे हो। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय। हाँ तो वो नए बिजनेस का नया जीएसटी नंबर वहाँ पे डाल के वो इनपुट ट्रांसफर हो जाता है सारा का सारा। अगर वैसे अगर बिजनेस ट्रांसफर हो गया फिर वो लायबल हो जाएगा सारे केसेस के लिए। ITC 03 के लिए अभी हम ऑलरेडी दूसरी फर्म बनाने का प्रोसेस में है, लेकिन अगर ITC बढ़ती वो लायबिलिटी आ जाएगी वहाँ पे। हाँ फिर वो सर वो कहेगा आपने बिजनेस टेक ओवर कर लिया, फिर तो आपका सारा जो अगर ऐसे में डीबैट की लायबिलिटीज खड़ी है उसके पुराने उसी को वगैरह पेमेंट्स का वो भी ट्रांसफर हो जाएगी प्रैक्टिकली। डीबैट की लायबिलिटीज सब वो भी हो जाएगी क्योंकि ट्रांजिशन प्रोविजंस के थ्रू वो सारे लायबिलिटीज। अगर ITC सिग्निफिकेंट ना हो तो पेमेंट एडवाइस करेंगे तो उसको छोड़ दो। हाँ छोड़ दो सर उसको लैब्स करा दो। अगर आईटीसी में ज़्यादा मोटा नहीं है तो आपको लैब्स ही करा पर इसकी दो। सपोर्ट में हम क्या साथ दे रहे हैं? सिर्फ ये लिखने से कि नो मोर ऑलरेडी डाइड ऑन सच सच डे। सर और तो सर लॉ में कहीं ऐसा लिखा भी नहीं कि वो आपका जो रिकवरी है वो किसी और से ऐसे करेगा। उसमें तो ये लिखा है कि आपके बैंक टैक्स कर लेगा, आपकी प्रॉपर्टी टैक्स कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। प्रॉपर्टी तो लीगल है इसकी हो गई।
प्रॉपर्टी का टैक्स है सर, प्रॉपर्टी टैक्स कर सकता है, बैंक अकाउंट भी सीज कर सकता है, वो भी कर सकता है, उसके पास पावर है। पर खाली ये लिख के देने से या समझाने से तो मानेगा नहीं। नहीं मानेगा। अब ये नहीं मानेगा कि कुछ कोई और सपोर्टिंग कुछ ऐसा वो मैं एक बार भेज दूंगा सर। वेटिंग मतलब बच जाएगा, हाँ? कुछ नहीं होगा तो बच जाएगा। कुछ नहीं होगा तो बच जाएगा, हाँ वो ठीक है, पर खाली जाके कहने से समझाने से तो मानेगा। यदि उसकी लाइबिलिटी से निकाल दी 50 लाख की डिमांड के साथ, अब वो उसको समझाते ऑफिसर तो नहीं छोड़ेगा सर, वो कैसे छोड़ तो जो देगा? मर्जी सेटलमेंट हो जाए वो कहेगा उसको तो अपनी प्रमोशन दिखेगी सर, वो नहीं छोड़ सकता है। वो छोड़ेगा भी नहीं, अपनी में भी मुश्किल है छोड़ेगा। जब अभी ट्रिब्यूनल बनेगा तो मैक्सिमम बहुत केसेस सॉल्व हो जाएंगे हमारे। ऐसा केस जिसमें 18-19 का केस आया और उसके बाद ड्यूरिंग 18-19 से 19-20 में रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करा दिया और नोटिस अब आ रहा है और डेथ हो चुकी है। सर 18-19 के नोटिस तो अभी आ ही रहे हैं। अब आएगा हाँ। 19-20 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या 18-19 में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और डेथ अब हुई और डेथ के बाद नोटिस आया। बस रिप्लाई कर दो कि वो डेथ हो चुकी है, अब क्या करें? हमारे पास ना डॉक्यूमेंट्स है, ना कोई हमारे पास उनकी रिकॉर्ड है, हम क्या कर सकते हैं? जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो आप प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो वो कर भी क्या सकते चलो सर? रिमांड निकाल के बैठ गए, रिप्लाई कौन फाइल करेगा? अप्लाई तो लीगल एयर करेगा, रिप्लाई तो कोई भी दे सकता है अप्लाई तो लीगल एयर करेगा ही करेगा। सर। आप ये कह सकते हैं ना हमारे पास तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड नहीं है उसके बंदे के, वो लोग कहीं छुपा के दिला के चला गया सर, क्या कर सकता है ऑफिसर? कुछ भी नहीं कर अप्लाई सकता। जाएगा। जब तक उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं है वो करेगा क्या सर? अदर देन उसकी प्रॉपर्टी टैक्स करना, वो डिमांड एंड रिकवरी में वो प्रोसीजर फॉलो करके वो फिर सामान इशू करेगा, फिर वो वैसे प्रोसीजर फॉलो करेगा, तब लंबा प्रोसेस है सर। तो ऑर्डर हो फिर गया वो आपको अभी। लीगल एयर को समन भेजेगा कि आगे डॉक्यूमेंट दो, हम बोलेंगे है ही नहीं डॉक्यूमेंट, फिर वो कोर्ट के थ्रू जो प्रॉपर्टी अटैच करेगा वो करेगा, फिर वो डिमांड एंड रिकवरी सीआरपीसी प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करेगा। नॉर्मली ऐसे नहीं फॉलो कर सकता। आप क्या कह रहे थे? एक सोल प्रॉपर्टीशिप जैसा एक्सपायर कर गया तो उसकी तो इमीडिएट मंथली रिटर्न जा रही थी, अब वो एक्सपायर्ड है लेकिन उसके लीगल ईयर में उनके घर से मोबाइल से ओटीपी लेके नहीं रिटर्न कर रहे हैं। ये गलती हो रही है, हाँ ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन गलती हो रही है। नहीं गलती क्या कर रहे हैं सर, वो सर ऐसे नहीं करते, बंदा ही मर चुका है उसकी रिटर्न भर क्यों रहे हैं? पर वो फोर्स कर रहे हैं ना भरने के लिए, क्योंकि सर बिजनेस हो रहा है, नील ही भर रहे हैं की बात सर, खत्म करा दो ना, कैंसिल ही करा देते नंबर। कैंसिल कराने के लिए वो कहते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। मेरे केस हो रहा है, मैंने वेट की 1-2 महीने वेट किया, दूसरा वाला सर्टिफिकेट जो होता है सर्वाइवल सर्टिफिकेट लगाया, कहता सक्सेशन लेके आओ, तो एप्लीकेशन ही नहीं, सक्सेशन लेके आओ। अब सक्सेशन लेने का मतलब है 6-8 महीने का और वेट करो और फिर उसमें चार्जेस भी लगते हैं, उसकी पूरी जो भी है एसेट्स की लाइबिलिटी किसी से एडवाइस कंसल्ट उन्होंने ये कहा कि भाई आप इसके रिटर्न तो कर दो और जब ये सब डॉक्यूमेंटेशन आते तो जाके पेमेंट कर देना कि एक्सपायर्ड है। इनका टाइम है तो सेम ड्यूटी को 2-3 महीने पहले एक्सपायर कर चुका, 2-3 महीने बाद हम बताएंगे तो उसके बाद भी रिटर्न कॉल कर रहा है। हाँ सही बात है, कौन भर रहा है? वही तो दिक्कत है, ये तो फिर डिपार्टमेंट भी तंग करेगा इस केस में। कुछ नहीं पता। उनको कुछ नहीं पता सर। मैं पहले जब लॉकडाउन के टाइम पे जब बहुत डेथ हुई थी उस केस में लेके जाते थे, कहते यार हमारे पास ग्राहक के लोग अपने पास मोबाइल नहीं है, कर दो अपने आप वहीं अपना सिग्नेचर ऐड करो और खत्म कर दो या सीधे बंद कर दो। आज भी मैंने नहीं, आपने सर कैंसिल की रिक्वेस्ट डाली थी? नहीं, कैंसिल की रिक्वेस्ट डालने के लिए मैं लेके गया था, इसका सिग्नेचर ऐड कर दो और इस ताकि हम कैंसिल की रिक्वेस्ट डालें। अच्छा, आपके पास फोन नंबर वगैरह ओटीपी नहीं हाँ है? सब कुछ था, लेकिन हमें अच्छा। लीगल तरीके से चलते हैं। ओके। तो एक ने पहले तो डराते रहे, मैं 2 केस थे, दोनों केस में मैं करवा के लाया मैं, लेकिन मुश्किलों से बात अभी एक किसी की डेथ हुई है 3-4 महीने पहले, उसके लिए मैंने ऐसे वेट करके सर्वाइवल सर्टिफिकेट बनवाया, सर्वाइवल सर्टिफिकेट का मैंने एप्लीकेशन लगाई, 4 सर्वाइवल थे, उनकी सबकी लेटर आया कि मेरे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसका ये हमने से 4 में से इसके नाम है और सिग्नेचर ऐड कर दो सो दैट द फर्म कैन बी क्लोज। सक्सेशन सर्टिफिकेट लाओ, सुनने को ध्यान नहीं है। उनको कुछ नहीं पता था। स्टेटमेंट सेंटर में? स्टेटमेंट स्टेटमेंट तो और होगा। कहीं कुछ ऐसा है सक्सेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ मिल सकता है, ऐसा लॉ में तो कहीं नहीं लिखा। तो वो तो बात ही नहीं करते हो यार। लीगली नहीं कभी लिखा हुआ इस बारे में। बाकी कुछ इस पर मैं भी, मेरे पास अभी कोई केस आया नहीं ऐसे डेथ वाला, कोई आता तो फिर मैं भी शेयर करता हूँ। केस साथ में नहीं केस नहीं, कुछ अगर कोई मटेरियल मिलता है तो मैं आपको शेयर करता हूँ।
या मैं स्पीड पोस्ट से भेजूंगा लेटर पर तब उससे फर्क क्या पड़ेगा? लेट हिम रिप्लाई। और मतलब आप वो मजबूर कर रहे हैं कि मैं उसका ओटीपी से उसको ऑथेंटिकेट करूं, ठीक है। तो मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है। अब वो ये अगर पोर्टल पे हम उसको ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड कर लेते हैं, फिर कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालेंगे, वो डेट ऑफ कैंसिलेशन पूछेगा, रीजन पूछेगा, ठीक है ना? तभी देगा। हाँ, तब नहीं एरर देगा कुछ, तब के सब प्रोसीजर से चल जाएगा। हम लीगली प्रोसीजर से करेंगे तो वो और तक करेंगे वो। एक तो सर नोटिस ऐसे आया, पता नहीं उन्होंने पार्टी के हमारे टूरे से पार्टी के नाम उठा लिए, उसके आगे ये लिख दिया कि इस पार्टी से आपने ये इनपुट लिया है और इसका आपका आईडी से रिवर्सल करो। अब वो पता नहीं उन्होंने इनपुट की डिटेल ना उसके जीएसटी नंबर पे उसने अपनी सप्लाई डाल रखी है जो हमारा वेंडर था। मान लो मैं आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, मैंने आगे किसी से सर्विस ले रखी थी आर्किटेक्ट की, उसने अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कहीं पे भी इनवॉल्व प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए कहीं भी उसने नहीं डाल रखा, लेकिन नोटिस ही आया कि आपने उससे कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेज कर रखा। एसएससी कोड के साथ लिखा हुआ था, ये एसएससी कोड की आपकी सप्लाई मिली है, इसको आप रिवर्स करो। हमने वो बिल मंगाए, बिल देखे, बिल के अंदर कहीं सर वो एसएससी कोड नहीं, कहीं वो मटेरियल नहीं, कहीं कुछ नहीं। ऑर्डर निकाल दिया सर। एक तो केस में वो जो एक तो एलईडी लाइट्स बनाता है, एक स्टेबलाइजर बनाता है, उसका है एक्सेस आईटीसी क्लेम अंडर सेक्शन 75 ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड हार्डवेयर गुड्स। सर कोपल मेटल सब में आ रहा है। सब में आ रहा है सर, सब में। हार्डवेयर का तो सबका कॉमन है, एसएससी कोड लिख के वो सबको नोटिस दे दिया। उसका रिप्लाई दे दिया, नहीं सुनते सर, अभी भी तो नहीं होता। अपील में जाएगा सर। सर ऐसे ही एक केस मेरे को भी आया, वो फोन आया किसी क्लाइंट के केस में कि वो कह रहे हैं कि आप प्लाईवुड में डील करते हो। मैंने कहा ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमारे रजिस्ट्रेशन में मोबाइल का काम है। कह रहे जी आपके पोर्टल पे भैया आ रहे हैं। सर वो पोर्टल में सब कुछ देख लिया लेकिन कहीं नहीं है, अब उनके पोर्टल में कहाँ पे दिख रहा है ये नहीं समझ आती है मेरे को। पता नहीं सर कैसे देख रहे हैं उनका पोर्टल पे क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता, पता नहीं सर। एक केस में मैं गया नंबर जीएसटी नंबर अमेंड कराने के लिए और एड्रेस अमेंड कराना। एड्रेस अमेंडमेंट के लिए उन्होंने पहले सारी लाइब्रेरी निकाली हमारी, 2A वर्सेस 3B और 1 वर्सेस 3B, सारा डाउनलोड किया पोर्टल से, सारी लाइब्रेरी देखी, आपने आईटीसी एक्सेस में ले रखा है टूल से। 3B से आपका इनपुट टैक्स जो है 1 में ज़्यादा आ रहा है, 3B में ज़्यादा आ रहा है, वो डिफरेंस निकाल दिया। वो सारी क्लैरिफिकेशन देके, रीज़न देके, उसके बाद जाके उन्होंने नंबर वाला अमेंड किया। दो केसेस में 17, 18, 18, 19 लॉकडाउन के दौरान आया कि आपने इनपुट ज़्यादा रखा है, एक्चुअल में इनपुट ज़्यादा रखा ना, आउटपुट लायबिलिटी कम करने की जगह इनपुट ले लिया। अच्छा, तो शुरू में गलतियाँ होती थी, हाँ बहुत गलतियाँ हुई ऐसी। तो उनको एक्सप्लेन किया, फिर नोटिस तो वेग आया करते थे, उसका बता दिया, बता दो क्या है, उसको लाके सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड के बाद कैंसिल कर दिया, एक दो में से एक कैंसिल कर दिया, एक अभी पड़ा था। तो उसके जब कैंसिल किया तो रीज़न आए कि आपने ये इनपुट ज़्यादा दिया, ये इनपुट ज़्यादा दिया, उसको एक्सप्लेन करते हुए कोई एक्स्ट्रा को लॉस नहीं है। एक केस में जिसमें उसे कैंसिल कर दिया था, अपील करी, अपील से फेवरेबल ऑर्डर आया। दूसरे केस में उसने हमारा जो कैंसिल किया था वो रीस्टोर कर दिया। 17, 18, 18, 19 दोनों एक्सप्लेन किए हमने। अब नोटिस आ गया दोबारा से, हमने उसको बता दें भाई 17, 18, 18 ऑलरेडी ये फेवरेबल डिसीजन हमारे पास है, अभी दोबारा से क्यों दे दो आप। उन दिनों ये भी आया था हाई कोर्ट ने किसने कहा था कि भाई आँख नीचे जो ऑलरेडी केस हो चुके हैं उनके लिए भी है, तो कुछ सुनवाई नहीं, और उसने जवाब भी दिया हुआ है, इररिलेवेंट एक्सप्लेन किया हुआ है। जो हमारा एससीएन का इशू था उसको तो टच भी नहीं किया। क्या जवाब है उसका, कुछ नहीं दे सकते। क्या करें उसका? सर कोई आप कह रहे थे ना ये 7 10 11 12 वाला कट करते हैं, 10 तारीख में 11 हाँ हाँ, उन्होंने 12 दिया या नहीं भी दिया, उन सारे केसेस के डीआरसी 7 पे भेज दिए। सबके डीआरसी सर कुछ नहीं कह सकते। मैं तो अपील में लेके आया था फेवरेबल, सर अपील में लेके आए थे, उस आपने अपील का ऑर्डर भी लगा दिया होगा, लगा दिया, तभी नहीं माना होगा, तभी नहीं माना। नहीं मानते सर। तो करें क्या कुछ नहीं सर, आप कुछ नहीं कर सकते इस केस में सर, आगे? सिर्फ वेट करके अपील नहीं कर सकते दोबारा, और दोबारा कोई ऑर्डर की कॉपी लगाओगे आपके फेवरेबल में डिसीजन आएगा, फिर दोबारा तो मान लेगा। 10% तो जमा कराना पड़ेगा।
जैसे किसी डीलर की डेथ होती है 20 तारीख को हुई है, तो हम डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस कौन सी डेट को अप्लाई करेंगे? आप कभी भी करोगे 20 से ही करना पड़ेगा ना। ऐसे हमने किया 20 से, वो कह रहा भाई आप गलत डेट मान रहे हो। वो 21 से बोल रहा होगा। मैंने कहा आप बता दो, कह रहा सी आपको हम है। सर वो ये कह रहा होगा ना 20 को तो बंदा जिंदा था, तो कुछ तो बिजनेस किया उसने। वो डेट ऑफ डेथ पे पूछेगा, टाइम ऑफ डेथ पे कब टाइम डेथ हुई, रात को ही सुबह हुई, सुबह 2 बजे हुई तो फिर तो बिजनेस नहीं कर सकता, शाम को ये मतलब पूरे दिन तक तो बिजनेस सर कुछ नहीं कह सकते, ऑनलाइन चल रहा है ना, बस चल रहा है। कहीं जैसे भी सिरटेक्स बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक की थी, तो 2-3 दिन की इलीगल सिर्फ थोड़ा और ज़्यादा लंबे होना चाहिए था। सर लेकिन देखो डिपार्टमेंट ने सर्कुलर तो निकाल दिया ना, क्लैरिफिकेशन निकाल दी कि ऑर्डर स्ट्राइक कौन रहा है जी? नहीं कर सकते। दोबारा कर दी थी स्ट्राइक। पर ये तो चलो एडवोकेट ने कर दिया, हाँ, ये तो कर दी। सीए तो कहीं जाते नहीं, वो तो कह रहे कोई नहीं अपील आ जाएगी, अपील कर लेंगे। वो तो परेशान हो गए, कहते हम परेशान हो गए। अच्छा डिमांड कैसे कैसे निकाल सकते बिना मतलब कि कोई भी रीजन नहीं। Reply right, found not satisfactory। हाँ बस सर यही reason है। कितने ऑर्डर है हाई कोर्ट के भैया, if reply is filed you have to discuss, first discuss what the reply was and then सर एक तो क्या दिक्कत है, एक्सपोर्ट सर्विसेज दिखा रखी है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑनलाइन इनकम दिखा दी, उसको ये एग्जाम सर्विस मान के उस पर 42-43 के नोटिस दिखा रहा है। ये तो बहुत सारे केसेस में इस तरह से बहुत सारे मतलब एग्जाम सर्विसेज है और आपने एमटीसी कैसे ले लिया? हाँ सर एक्सपोर्ट सर्विसेज है, एक्सपोर्ट आर टैक्सेबल सर्विसेज, एक्सपोर्ट के केस में नहीं डिनाई हो सकता। तब भी वो कहते नहीं ये तो एग्जाम है और इस पे 42-43 आपने एनयूटी कर रखा है ना, इसलिए एक्सेप्ट है। तो रेटेड डेरिवेटेड में ये डिफरेंस। हाँ यही फर्क है, जीरो रेटेड आर टैक्सेबल सर्विसेज और उस केस में 42-43 की कोई रिवर्सल नहीं बनता। 43 के एक्सप्लेनेशन में ये भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट इनकम जो है वो रूल 42-43 के लिए वी डोंट हैव टू कंसीडर इट एज एग्जाम सर्विस। मतलब हमने इंटरेस्ट इनकम को 42-43 के जो रिवर्सल है उस केस के लिए इंटरेस्ट को लेना नहीं है। तो नहीं सर रूल में लिखा हुआ है, पीएसपी लॉ में लिखा हुआ है, नहीं मानते तो क्या कुछ कर नहीं सकते ना, हमारे पास भी पावर नहीं है। तो कभी ऐसे कैसे चलेगा ये तो? हाँ सर अभी तो देखो जब तक ट्रिब्यूनल नहीं बनता ना, ट्रिब्यूनल बनने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। ट्रिब्यूनल बनने से नीचे के नीचे बहुत ज़्यादा केसेस सॉल्व हो जाएंगे। हाई कोर्ट तक सर कई लोग पहुँच भी नहीं पाते, कई जा भी नहीं पाते क्योंकि कॉल ज़्यादा हो जाती है उनको हाई कोर्ट के लिए। ट्रिब्यूनल बनने से क्या होगा कि बहुत केसेस फेवरेबल में आने से नीचे हम डिपार्टमेंट को कह सकते हैं सर ये फेवरेबल केस है, इसको छोड़ दो। नहीं आप कह के देखो कि हाई कोर्ट सर दूसरे कोर्ट के नहीं मानते ना, एक मैक्सिमम देखो सर कोर्ट क्या हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, कलकत्ता, गुजरात इनके फेवरेबल डिसीजन आए हुए हैं अभी तक। बाकी यहाँ नॉर्थ के तो बहुत लिमिटेड मैंने देखे, कोई ज़्यादा केसेस भी आ भी जाएगा दिल्ली वाला हाई कोर्ट, तो ठीक है कोई बात नहीं ना, हाई कोर्ट ने बेनिफिट दिया ना, इसलिए ना फिर वो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या केस पेंडिंग तो नहीं है, फिर वो उस पॉइंट पर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो जब वो अभी वाला देखेगा एओ लेवल पे प्रॉपर ऑफिसर लेवल पे, अच्छा हाई कोर्ट ने रिलीज दिया ना, ले लेना आप भी ले लेना सर। ये तो क्या है 16/4 की डिमांड में कोई रिलीफ नहीं है। क्या सर 16/4 का जो इनपुट डिले सुप्रीम कोर्ट लेट फाइलिंग, हाँ सर उसमें ना 2 केस के नोटिस आया था 16/4 में भी, एक तो हमने खुद लेट रिटर्न फाइल करी है और एक दूसरा है कि सामने वाले ने लेट रिटर्न फाइल और उसमें दुए निकाल के देखो सबकी जीएस पे सर दुए की 17-18 के 17-18 में तो 8 होता ही नहीं था, 8 डाउनलोडिंग नहीं होता, जो आपकी 9 के अंदर 8 टेबल आता है वो क्या होता है पूरे साल में 2 होता है, जिन्होंने टिल द डेट ऑफ जो 16/4 की डेट है तब तक जिन्होंने रिटर्न फाइल कर दी उसका सारा इफेक्ट वो 8 के अंदर आ जाता है। लेकिन 17-18 में 8 था नहीं, उस केस में 2 डाउनलोड करना पड़ता है मंथली। आज की डेट में आप 2 डाउनलोड करो सर, हर रोज डाटा चेंज है, हर रोज के रोज डाटा चेंज है, 2 भी तो फ्रीज हो जाता है, लेकिन 2 वो है
नहीं, बट 2A डाउनलोड किया, उसमें जितनी जीएसटी और 1 की फाइलिंग डेट है सारी 20 अक्टूबर 19 से पहले किया है, और नोटिस इशू किए हैं कि आपके सप्लायर ने 20 अक्टूबर 19 से बाद फाइल किए हैं। ये सिस्टम भी अलाउ सप्लायर का रिटर्न फाइल करके हमने लेके हमने लेट करी होगी फिर। नहीं, सप्लायर क्या है कोई रिलीफ हमने टाइम से किया है, सप्लायर ने टाइम से किया है। अच्छा, हमारी रिटर्न सब टाइम से फाइल है, 2A में गए जीएसटी और 1 सारी टाइम से फाइल है सारे सप्लायर्स की। नोटिस आ गया 20 अक्टूबर के बाद। सर देखो ना सर, नोटिस से पहले क्या हुआ, कई जो है बैक डेट से कैंसिल कर दिए डिपार्टमेंट ने हाँ। नंबर, वो बैक डेट से कैंसिल कर दिए, उनके 2A का इनपुट खत्म, वो भी आ रहा है। वो नहीं आ रहा, वो लेके रखा हुआ हट गया होगा सर, पक्का हट गया होगा। जो बैक डेट से कैंसिल हो गए उसके बाद वाला 2A कैंसिल हो सर जो कैंसिल्ड वाले बैकडेटेड वाले उसमें तीन रो दे रहे हैं। नंबर 1 इनवॉइस की डेट इज बियॉन्ड द कैंसिलेशन डेट, दूसरा है द सप्लायर हैज नॉट नहीं, ये आप 2A डाउन करने की बात कर रहे हो। नहीं, मैं जो नोटिस में 3 लाइन दे अच्छा, रहा हूं, नोटिस में 3 लाइन। नोटिस में 3 लाइन दे रहा है। पहला तो है कि सप्लायर जो आपका इनवॉइस है सप्लायर का वो इज बियॉन्ड द कैंसिलेशन डेट, दूसरा है सप्लायर हैज नॉट पेड द टैक्स because he did not file 3B, third है although he has filed 3B but return उसने nil turnover nil दिखाई है, hence is not filed the tax, not deposited tax। आप नीचे वाले दोनों में आप नहीं दे रहे हो 000, पहले वाले में दे रहे हो, तो आपने खुद एडमिट कर लिया कि 3B फाइल्ड है और टैक्स दिया हुआ है, लेकिन आप राइटिंग में लिख रहे हो you have availed the tax from the invoices who the supplier who has not paid the tax liability। सर एक केस तो ये भी आया, मैंने मेरा नंबर कैंसिल हो गया बैक डेट से, मेरा ये 2A क्या गलती है लेकिन सर मेरा 2A खत्म हो गया बिल्कुल ही, 9 भर दी मैंने, डिपार्टमेंट ने नोटिस निकाल दिया कि आपको 9 मिलेगी कहीं से भी, उसने ये निकाल दिया कि आपके 2A में तो 0 दिख रहा है इनपुट, लेकिन आपके 9 के अंदर 3B के अंदर इनपुट आ रहा है। मैं ये इनपुट का सारा रिवर्सल करूँगा, मेरा नंबर बैक डेट से कैंसल्ड है, मेरा 2A खत्म हो गया, 0 हो गया। 3B के अंदर इनपुट है, 9 के अंदर इनपुट है, वो कह रहा आपने इनपुट गलत अवेल कर दिया, हमने कहा 8A में दिख रहा है, वो भी नहीं मानने को तैयार। हम तो ये फाइट कर रहे हैं कि जब हमारा इनपुट ही कैंसिल कर दिया और जो मैंने टैक्स पे कर रखा है वो रिवर्स वापस कर दो मेरा, फिर जब मैंने काम भी फ्रॉड कर रखा है, मेरी जब सेल ही फ्रॉड है तो परचेज भी फ्रॉड है, खत्म कर दो सारा कुछ मेरा वापस। अभी देखते हैं डिपार्टमेंट क्या करता है, मानता है नहीं मानता, क्या करता है। और जो हाईकोर्ट ने कहा भी तो बहुत से हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप कैंसिल कर दो तो बैंक डेट से कैंसिल नहीं करोगे। बहुत सारे डिसीजन आए हैं, 2-3 डिसीजन आ गए यहाँ पे, लेकिन वो वो नहीं मान रहे। नहीं मान रहे सर। अब वो कहते हैं कि हमें रीजन देखना है कि ये कैंसिल क्यों हुआ। हमारे वेंडर जो बैक डेट से कैंसिल हो गए, वो पहले उसके रीजन ढूंढते हैं कि क्या ये DCI ने कैंसिल करे, क्या बंदा फ्रॉड है, ठीक है ना, या बंदे की रिटर्न फाइल नहीं थी लेकिन बंदा एक्टिव है, अभी भी दिख रहा है कहीं, ट्रेसेबल है। वो 5-6 रीजन उनके पास होते हैं, बट दैट रीजन हैज टू बी देयर इन शो कॉज नोटिस। हाँ, पर वो हमें नहीं बताते, उनके खुद के पास पोर्टल पे सारे रीजंस हैं, और आपने जो शो कॉज नोटिस में डाला ही नहीं, हमें नहीं बताएंगे, बस ये बता देते हैं कि आप कर कैंसिल। सकते हैं, लेकिन आज के डेट में नया थोड़ी रीजन दे सकते हैं। ठीक बात है। 74 लाना पड़ेगा शो कॉज में नोटिस देना था, वो दे दिया जो देना था। हमने जो रिटर्न फाइल लेट कर रखी है, हमने तो फिर उस पर भी फाइट कर रहे हैं सर, लिटिगेशन में वो भी आ रहे हैं कि जब आप इतने बार आपने अमेंडमेंट एमनेस्टी स्कीम निकाल दी कि आप रिटर्न भर लो, वो भरने को दी क्यों रहे हो? जब आपने इनपुट ही नहीं देना, फिर आप रिटर्न फाइल क्यों कर रहे हो, हमें दे रहे हो? वो कहते नहीं कि कोविड आया, कोविड में भी रिलैक्सेशन इतनी ज़्यादा नहीं दी, कोविड की तो बहुत ज़्यादा केसेज आए हुए हैं, ट्रस्ट लायबिलिटी के, तो लेट पेमेंट, लेट फाइलिंग, इसके बहुत ज़्यादा है। फिर वो दे देते हैं कि आप बैक डेट से अपनी रिटर्न कम लेट फीस पे पे कर दो। फिर जब आपने हमें अमनेस्टी स्कीम दे दी कि आप रिटर्न लेट फाइल कर दो, फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि आपकी रिटर्न लेट है, हम आपको इनपुट अवेल नहीं करने देंगे? ये तो सारे सर अभी तो बहुत ज़्यादा लिटिगेशन स्टार्ट होने वाली है GST के अंदर। सर एक्साइज को कितने साल हो गए थे GST आए हुए? 50 साल तो एक्साइज को हो गया, अभी तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं डिसाइड कर पाए वो कि कौन सी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है। ये तो अभी 6-7 साल हुए सर, अभी तो देखो कितने साल तक ये लिखता रहेगा, कभी कुछ हाई कोर्ट आएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आएंगे, उसके बाद पता नहीं फिर गवर्नमेंट बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके सब सरल कर देती है।
43 BH में बैकडेटेड आएगा क्या? सर 43 BH में उम्मीद है कि बैक डेट से 1 साल का रिलैक्सेशन की उम्मीद तो है, जो सुनने में आ रहा है अभी। पर रिटर्न फाइल करने से पहले आएगा तब है, लेकिन सर जान तो गई है सब। सर मैक्सिमम लोगों ने अब तो डिसीजन लेना है ना सर, जुलाई तक वेट होना करेंगे डिसीजन लेने का, जब तक बजट आएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। सर ने लोन दे रखे हैं सर इंडस्ट्री वाइज इनको देखना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री को क्या इम्पैक्ट होगा। एक मेरे क्लोथ के इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री की, सूरत से माल मंगाते हैं फैक्ट्री से डायरेक्ट, होलसेलर और रिटेलर्स को सेल करते हैं यहाँ पे। अब उनको क्या दिक्कत है, कहता रिटेलर के पास जब तक माल बिकता नहीं तो उसकी कलेक्शन नहीं होती, वो मुझे पेमेंट नहीं करता, और मैं जब तक आगे पेमेंट कैसे करूँ, मेरे पास पेमेंट ही नहीं है। लोन लो। और कितना बैंक से लोन लेके कितनी वर्किंग कैपिटल आप चलाते रहोगे। रियल एस्टेट में कितनी दिक्कत है सर, आप अपनी पेमेंट छोटे छोटे, जब आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, प्रोजेक्ट आपका भी चल रहा है, प्रोजेक्ट की पेमेंट तो आप 20% ले रहे हो, खर्चा तो आपके वेंडर्स को बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, आप कैसे पेमेंट कर सकते हो बैंक से। टाइम भी कुछ नहीं दिया सर, 30 दिन 45 डेज। पहले या तो कहीं वर्ड लिख देते ना कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट कर दो, कॉन्ट्रैक्ट का भी कहीं पॉइंट नहीं दिया, 45 डेज टाइम दे दिया, प्रोसीजर में कर लो। ग्रेजुअली बंद कर सकते थे। हाँ, वो भी नहीं दिया सर, एकदम से डिसीजन लिया बिल्कुल ही। और डिसीजन तो पिछले साल भी लिया था, पर अभी जो रिप्रेजेंटेशन लेट आई सबकी, पर फिर भी कोड ऑफ कंडक्ट से पहले रिप्रेजेंटेशन दी, उसको कर लेना चाहिए। हाँ कर लेते तो अच्छा था। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद तो नहीं कर सकते, पर चलो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कर सकते थे, इतनी तो मेजॉरिटी है। तब भी कई बार वो सुनने में ये है, वो कहते हैं हम इसको Consider कर ऐसे रहे हैं। कंसीडर कर रहे हैं, पर फाइनेंस बजट से पहले हम कर नहीं सकते इस चीज को, क्या ये बजट नहीं हम कर सकते हैं तो, क्योंकि एमएसएमई एक्ट में कहीं डेफिनेशन में चेंज करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। अब देखो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि हम सर 3-3 करोड़ रुपए की पेमेंट्स करी हैं वेंडर्स की। अब वो कहते हैं जुलाई तक की वेट होना करेंगे, वहाँ तब भी ना आया फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट की लायबिलिटी बन जाएगी तब भी। इसमें सर ये ट्रेडिंग वाला क्या कंसेप्ट है, बड़ा कंफ्यूजन है। सर ट्रेडिंग वाला तो अभी भी हमारे पास भी कंफ्यूजन है कि ट्रेडर्स के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, क्योंकि एमएसएमई एक्ट के अंदर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर दिख रहे हैं अभी लिखे हुए। सर उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडर टू ट्रेडर अप्लाई नहीं होगा। नहीं अगर मैन्युफैक्चर टू ट्रेडर अप्लाई से करिए तो वहाँ एप्लीकेबल होगा। सर ऐसा तो एमएसएमई एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं कर रहा था। वो मैन्युफैक्चरिंग तो सर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पे। तो फिर उसमें तो होगी ना क्लियर। सर अगर आगे वाले वेंडर सेक्टर, आगे वाले वेंडर तो सेक्टर, वहाँ तो एप्लीकेबल होगा ना। सर हम ट्रेडर टू ट्रेडर भी बोल रहे हैं कि पेमेंट करनी पड़ेगी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई में तो मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज वाले की कवर है ना, तो सिर्फ वही ट्रेडर जो 45-46 रजिस्टर्ड है उसको पेमेंट देने की जरूरत है, मतलब उसको 45 डेज में देने की ट्रेडर टू ट्रेडर, ट्रेडर टू ट्रेडर के बारे ट्रेडर में नहीं, मैन्युफैक्चरर भी अगर ट्रेडर से लेता है 45-46 में रजिस्टर्ड है तो एनीबॉडी टू ट्रेडर। अगर आपका वेंडर ट्रेडर है तो हाँ। वेंडर का देखना है। हाँ वेंडर, क्योंकि पॉइंट ये भी चल रहा है कि ट्रेडर को इन्होंने पहले उन्होंने कहा कि ट्रेडर को रजिस्ट्रेशन क्यों करनी थी, एमएसएमई में पहले ट्रेडर का ऑप्शन ही नहीं था। वो तो कहते हैं कि सिर्फ उनको जो है सस्ता लोन मिल जाए, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन मिल जाए उनको, इस वजह से हमने ट्रेडर को उसको ऐड करने दिया कि ट्रेडर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले लें। ठीक है, उसके बाद बहुत रिप्रेजेंटेशन ये भी आई कि ट्रेडर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, बाद में कहते हैं कि होगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं इस मामले में, सब अपने अपने एक्ट पढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से जो उनकी नॉलेज कहती है उस हिसाब से चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी इस पॉइंट पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। अगर देना होता तो अभी दे ही देते सर, इतना पॉइंट जब पूछ रहा है तब भी दे देते कि ट्रेडर के ऊपर। कंफ्यूजन की हाइट इतनी है, मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर को कॉल कर रहा है, ये तो तुम मुझे पे नहीं करेगा तो तुम बेनिफिट नहीं ले पाओगे। हाँ। तो यार आई एम ग्रेटर, आई एम टोटली एग्जैक्ट। हाँ यहाँ तक आया सर, आया हमारे पास भी आया था, हमने मेल डाली कि हमने ये हमारी ये पेमेंट कर दो, तो वो कहते नहीं आप तो ट्रेडर है, हमें कोई एप्लीकेबल नहीं होता 43 का। साफ का कह रहे थे वो मनमर्जी से यूज कर रहे हैं उसको। मन मर्जी से। ये तो लोग ये कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, भैया मेरी पेमेंट कर दें ताकि मैं आगे दे सकूं, और बाद में मैं तेरे को जब कैश दे दिया मैं पेमेंट दे दूंगा। तो यार क्या ही कर सकते हैं।
या अभी पेमेंट दे दो, 50 लाख रुपए अभी दे दो, बहुत ज़्यादा कंप्लेंसेस बढ़ा दिए हैं। 20-30 लाख रुपए एक हफ्ते को टीडीएस इतना आसान होता था पहले सर, टीडीएस का ही नहीं पता चलता सर क्या कितने सेक्शन ले आए, क्या क्या ले आए, कोई 1% लग रहा है, कोई 5% लग रहा है, कितने रेट्स ले आए। तो 8 या 10 पेज की वो आई है इनकम टैक्स की टीडीएस की लिस्ट, अच्छा अभी 2-3 दिन पहले क्या क्या है उसमें? लंबी लिस्ट है, कौन कौन से कितने सेक्शन है, क्या क्या है, 8 या 10 पेज की है। और जिसने पैन आधार लिंक किया उसके आप पैन नंबर इलेक्ट्रिक कुछ वो हो गया, बंद हो गया तो आपका 20% मिलेगा। कर दिया 20%। तो सर डिमांड आई थी, एक ने रिटर्न कर दी टीडीएस की, वापस डिमांड आ गई टीडीएस की, उसका पैन और आधार लिंक नहीं है, 20% टीडीएस का। जैसे उसका लिंक करवा दिया जी। वो पुराना तो वो डीसी रहेगा, प्रॉपर्टी वाले केस के अंदर में पुराना तो डीसी रहेगा, आगे से चला गया बाहर, उस केस में बोलेगा प्रॉपर्टी केस में किसी ने प्रॉपर्टी बेची बायर ने 1% जो कागज में जमा करा दिया, ठीक है। उस केस के अंदर लायबिलिटी आ गई, वैल्यू बहुत होती है, करोड़ की वैल्यू होती है, उस केस के अंदर मतलब पैन और आधार लिंक नहीं था। कोई क्या कोई भी एरर हो गई, उसकी एरर रह गई, 20% आप हो इसका गई। भी डिमांड आ गई, अब ये डिमांड को देखो 20% कैसे देगा और किसको हाँ वहाँ से पेमेंट होना मांगेगा वो 20% की। वो चला गया बाहर, तो बाहर जाना तो ले गई लो, लिंक नहीं है उसका, लिंक नहीं होगा तभी आईओडी डिमांड सर। कुछ है नहीं बायर और सेलर आपस में थोड़ी रिलेशन है, मैं मान गया सर। लिंक नहीं होगा या मैं इनएक्टिव जानता ही नहीं कौन था, वो तो प्रॉपर्टी बेच रहा था, नहीं सर, मैंने खरीद ली। सर लिंक से मतलब ये कह रहे हैं पैन और आधार लिंक। पैन और आधार लिंक नहीं मैं कह रहा, किसी भी रीजन से जो भी रीजन हुआ वो मैंने दे दिया कि ये 20% की लायबिलिटी आ गई आपकी, हाँ ठीक है, वो वापस वहाँ से रिकवर कैसे करेंगे? एज ए डिडक्टर मैं उसको थोड़ी जानता हूँ, ठीक बात है। कहाँ फोन करो, तो कंट्रोल भी नहीं है कंट्रोल नहीं है, तो मैं जानता हूँ तो कंट्रोल नहीं है, अगर बायर ने दे दिया तो इनको उसको मिलेगा। वैसे जानता भी नहीं। एक आइडिया यूँ निकाली नहीं इन्होंने। उसको तो सर वो फिर कोई फंड नहीं मिलेगा। बेनिफिशियरी है, वो कुछ नहीं है सर। कुछ रिफंड तो नहीं है, ठीक है, आपको तो टैक्स कलेक्ट करना है इसके लिए आप ये बना के सर देखिए रिफंड तो पहले भी नहीं मिल रहा था क्रेडिट से जाते हैं, लेकिन ये है कि उसका एक बाईपास क्रिएट कर लिया, 100-500 रुपए की मदद से एक्चुअली लॉ तो ये ऐसे लाए थे कि विदाउट टैक्स हम पे रिटर्न फाइल नहीं होगी, पर 1000 रुपये पे के भी रिटर्न फाइल हो रही है। बाईपास हो गया ना। हो रही है सर, 1000 रुपये पे ओके प्रोसेस भी हो रही है। 10 रुपए देगी भी हुई है, अगर आपका टीडीएस है अच्छा। रिफंड तो मिलेगा नहीं, नौकरी क्लैरिटी ना तो 10 रुपए पे होने हैं। अभी सर क्या केस है? कुछ भी आप उसका डिसअलाउंस करो, पिछले साल तो इन्होंने आप डिमांड डिमांड निकाली निकालो ना थी। जी, आप उसमें जाके डिसअलाउंस डाल दो, टीडीएस टी काटा जो भी ईएसआई की रेट है, जो मर्जी डिसअलाउंस डाल दो, है डिसअलाउंस मिल गया उसका डिसअलाउंस डाल दो कि 10 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए का लाइट मिलता है 50 सर रुपए बैंकों के लोन लेने के लिए 3 साल की रिटर्न मांगते हैं सर सर। इंटरेस्ट इनकम अब कस्टमर आता है, इंटरेस्ट इनकम दिखाते कुछ नहीं होता। कुछ भी कर दो। अब इनका कस्टमर आता है पहले तो 2 साल की रिटर्न नहीं इनकम दिखाने के लिए तो मान लेगा ना कि आपकी इनकम तो थी, आपने दिखाई है तो आपकी है, आपने डिसअलाउंस दिखाया तो कम से कम उससे अब रिटर्न करते हैं, वो कहते हैं टैक्स नहीं पे करना, रिटर्न भराओ 3 साल की कैसे भराओगे? विदाउट टैक्स, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट लेट फीस कैसे भरेंगे? नहीं भरी जाती सर, बहुत दिक्कत है। इससे अच्छा तो ये होता है कि रिटर्न पुरानी जितनी मर्जी करवा लो लेट फीस के साथ, सबसे अच्छा था सर। क्योंकि आपने कहा कि ना कॉन्फ्रेंसेस बढ़ गए, अभी क्या केस पे फेस किया, एक मैनेजमेंट ने दूसरे से फैक्ट्री परचेज रेज करी थी, पीछे कोई पोजीशन की हुई थी, कुछ डिमांड आ गई थी, उनके आपस में सेटलमेंट कराया कि भाई ठीक है बेसिकली बिकॉज ऑफ प्रीवियस ईयर है तो आप ये आपकी गलती आप जिसने भेजा उससे रिक्वेस्ट करके जमा करवाई, उसने शर्त में जमा करी कि ये जमा करवाए, इसके बाद मेरी कोई लाइबिलिटी वो मुझे बात था पोल्यूशन के बाद उस मेट्रो सेल का इतने में वो ये सब्सिडी आ गया, सब्सिडी की डिमांड आ गई होती तो प्राइस लेवल ये चलते सर ठीक है सर शेयर नंबर शेयर हाँ, नंबर लिखना सर 9988 755 398 98 रिपीट कर दीजिए प्लीज। 9988 755 398। Thank you, Ranjini. Not only on bank audits, we have discussed lot many things. और कुछ तो 2-3 बातें ऐसी हैं जो मैं पहले बताई नहीं पता चली. Thank you very much. I'm requesting Sandhya Deepak kindly come and give a memento to इस पे नंबर लिखना है वो लगा Ranjini. Although the memento is same for Navya Prokha. लो वो वाला देना
So sorry. Thank you, Sudhya. Thank you, sir. If you can stay there. Thank you. Friends, we have